सभी को जिंदाबाद. A very, very warm welcome to all of you on behalf of the National Campaign for People's Right to Information. सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान NCPRI की ओर से आप सबको बहुत बहुत आज की जो हमारी डिस्कशन है उसमें आपका स्वागत है. Today's webinar is titled Banning Citizens from Using the Right to Information Act. It's a discussion on the legality of the orders of information commissions. तो आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने से जो RTI यूजर्स हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसकी क्या सही है, कितना सही है वो बात, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं. हम सब जानते हैं कि सूचना के अधिकार कानून के तहत जो कानून 2005 में पास हुआ था उसमें जो सूचना आयोग है उनका गठन किया गया है. केंद्र के स्तर पे भी किया गया है केंद्र सूचना आयोग का गठन, और राज्यों के स्तर पे भी राज्य सूचना आयोगों का गठन किया गया है. इनका काम है सब सारे जो आयोग हैं कि सूचना का अधिकार सही से चले. Information commissions have been set up under the Right to Information law, and the basic function of these commissions is to make sure that the provisions of the Right to Information Act are implemented in their letter and spirit. The Right to Information law has been one of the most empowering pieces of legislation for people in this country. It has enabled people to access information, to ensure transparency in the functioning of the government, and to hold the government accountable for delivery of basic rights and entitlements. And it has also been used by people across the country to hold the highest offices in the country to account, to question the government about the kind of policies that the government has framed, the kind of decisions that have been taken, the actions of the government and its functionaries. Around 60 lakh RTI applications are filed every year in India. And our research has shown that many of these applications are filed by people living in remote villages, in slum settlements, and asking for very basic information about their rations, their pensions, their other basic rights. What we have also seen, however, is from time to time, there is an attempt by various people in power, functionaries, to say that there is frivolous and vexatious use of the RTI law. And this has happened at various levels, including by Prime Minister of this country, the erstwhile Prime Minister. Now, we have consistently had a problem with this kind of framing because we've said that how does anyone decide what frivolous and vexatious is? Vexatious would be something that would upset someone. Now, if people are filing RTI applications asking for information that exposes corruption and wrongdoing, certainly certain vested interests, those who are involved in that corruption and wrongdoing are vexed. So should people not be allowed to ask for such information? Similarly, frivolous information applications. What is frivolous for someone might be a matter of life and death for another. And woman who is asking for her old age pension, which is just 300 rupees in a remote village somewhere, it might be a matter of life and death for her, but 300 rupees an RTI application about that might seem very frivolous to somebody else. So this entire debate has raged since the RTI law was passed. At this moment, we find that there is a new frontier. We are at a stage where information commissions are stepping up and banning people, blacklisting RTI applicants for various reasons. Some of them are that these applications that are filed by these applicants are frivolous. Some of them say they're repetitive. Some of them say they're very vexatious because they waste the time of
public authorities, and so on. So today, to talk to us about this very important issue, which impacts all of us as RTI users, each and every one of us who's a citizen of the country and uses this law, we have a set of very, very celebrated, illustrious information commissioners who have, through their time at the commissions, various commissions that they have been or are part of, given some very progressive orders and interpreted and adjudicated on matters related to the right to information. But before that, I'm going to request Pankti Jog of MAGP to talk to us, to give us a summary of some of these orders which have been passed by certain information commissions, which we are discussing today, which ban people from using their right to information. बहुत संक्षिप्त में मैं हिंदी में अनुवाद कर देती हूँ. हमारे साथ पूरे देश से लोग जुड़े हैं. आज हम लोग बात कर रहे हैं सूचना के अधिकार के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है कुछ लोगों के ऊपर कि आप इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग कोर्ट्स ने बार-बार कहा है कि ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है हमारा, जो आर्टिकल 19 से संविधान के फ्लो करता है. और हम जानते हैं कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल इस देश में जम के हुआ है. हम सब ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है. जो सबसे दूर दराज के गांव में बैठे हैं लोग, जो बस्तियों में रहते हैं लोगों ने हर साल हमारे देश में 60 लाख RTI एप्लीकेशन लगाए जाते हैं. और जो रिसर्च है, शोध है, दिखाता है कि किस तरह से लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी सूचना के अधिकार का जम के इस्तेमाल कर रहे हैं. चाहे उनकी राशन का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, पानी का, दवाई का, अभी कोविड का पूरा समय चला था, उसमें अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब के ऊपर लोग सूचनाएं मांगते हैं. और इस कानून ने लोगों को सशक्त किया है, सरकारों को और जो सत्ता में है, जिनके पास सत्ता है, उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए. पर एक जो बात बार बार आती रही है, जो कि सत्ताधारी जो रहे हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, पहले के भी, अब भी जो बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार में काम करते हैं, बार बार ये बात कही जाती है कि सूचना के अधिकार का दुरुपयोग होता है. फ्रिवलस और वेक्सेशियस, गुस्सा कर देने वाली और बिल्कुल बेकार सूचनाएं मांगी जाती हैं. अब हमारा शुरू से ही कहना रहा है कि गुस्सा दिला देने वाली सूचना मांगने से हम क्या करें, क्योंकि अगर हम ऐसी सूचना मांगते हैं जिससे कि किसी की भ्रष्टाचार के काम जो है वो सामने आते हैं या अनियमितताएं सामने आती हैं, तो उन्हें तो गुस्सा आएगा ही. तो क्या सूचना मांगनी बंद कर देंगे? क्या ऐसी सूचनाएं जो किसी के लिए बहुत ही छोटी मोटी बात हो, फ्रिवलस बात हो, लेकिन किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि वो जिंदगी और मौत का अंतर हो. तो अगर किसी महिला को 300 रुपए की पेंशन मिलनी होती है, वो उसे नहीं मिलती और वो सूचना मांगती है, तो कई बार अधिकारी कहते हैं कि तो छोटी मोटी चीजों के लिए हमारे से सूचना मांगी जा रही है, हमारे काम का समय बर्बाद किया जा रहा है, ये सोचा जा सकता है. लेकिन उन महिला के लिए शायद वो जिंदगी मौत का सवाल बन सकता है. और आज जो हमारी चर्चा है वो ये है कि आज हम एक नए पायदान पे पहुंच गए हैं, जहां पर आयोग कह रहे हैं कई राज्यों के कि हम कुछ लोगों को प्रतिबंधित कर देंगे कि वो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल ही ना कर सके. और क्या कह के ये बोला जा रहा है कि देखिए, बहुत ही बेकार सूचना की RTI की एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं. ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से कानून का इस्तेमाल हो रहा है, लोग बार बार वही सवाल पूछ लेते हैं, और ये सारे तमाम जो चीजें हैं ये सूचना के अधिकार पे अंकुश लगा रहे हैं. तो आज हम लोग सुनेंगे जो हमारे पूर्व सूचना आयुक्त रह चुके हैं, जिन्होंने अपने आयोग काल में, जब वो आयोग में थे उस समय पर बहुत अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं, कई बहुत प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स दिए हैं, उनसे हम बातचीत सुनेंगे. और कुछ जो अभी भी कमीशंस में काम करते हैं उनसे बात सुनेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पंक्ति जोग से, MAGP से हमारी साथी है पंक्ति, वो एक छोटी सी समरी प्रोवाइड करेंगी अगले 7 से 10 मिनट में
कि ये ऑर्डर्स आखिरकार क्या हैं, कहाँ के हैं, तो वो थोड़ा सा हम इससे अवगत कराएंगे। पंक्ति जी, मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। पंकज, फेसबुक लाइव सिर्फ माहिती के फ्रेंड्स के पास जा रहा है, आप उसको पब्लिक कर सकते हैं उसकी सेटिंग, या फिर अपने प्रेजेंटेशन के बाद आप कर दीजिएगा। नहीं, मैं कर ही देती हूँ अभी। नहीं, वो पब्लिक ही है। ठीक है, हाँ, मैं देखती हूँ। अब मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ओके, मैं जस्ट ब्रीफली बैकग्राउंड बताऊंगी इस मुद्दे का और जो ऑर्डर्स हैं उसके बारे में। फर्स्ट जो ऑर्डर्स इसके ऊपर आया था वो जुलाई 2017 में पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 18 जितने लोगों को ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं और उसकी एक पूरी सूची पीछे दी थी। ये जो कम्युनिकेशन है उन्होंने हर एक कमीशन को भेजा था, तो गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन के पास भी लेटर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का आया है। दिसंबर 2020 में गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन ने पहली बार फर्स्ट ऑर्डर ये किया कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक सिटीजन को हम बैन कर रहे हैं और वो आरटीआई का इस्तेमाल अब कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ऐसे 15 ऑर्डर्स निकले हैं जो 10 सिटीजन्स को, क्योंकि एक ऑर्डर रिपीटेटिव है तो 10 सिटीजन्स को 15 ऑर्डर्स में बैन किया है। एक सिटीजन को छोड़ के बाकी सबको लाइफ टाइम के लिए बैन है। एक सिटीजन है जिसको 5 साल के लिए बैन किया है और एक सिटीजन है जो एंटायर गुजरात के लिए बैन किया है। बाकी सब जो सिटीजन्स हैं वो पर्टिकुलर ऑथोरिटीज जैसे एजुकेशन अथॉरिटी और सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, वो अथॉरिटी के लिए और उसके ऊपर और नीचे वाले ऑफिस, मतलब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हुआ, गांधीनगर के एजुकेशन ऑफिसर हुए, या ट्रस्ट रन स्कूल है तो उस ट्रस्ट के जितने भी स्कूल्स हैं उन सबके लिए हुआ, इस तरीके से किए गए हैं। अगर हम बाद में देखें, उसमें देखें कि रीजंस क्या मेंशन किए हैं, तो मैं सभी रीजंस का एक लॉन्ड्री लिस्ट जैसे निकाला है। तो उसमें ये कहा है सबसे पहले तो कि एप्लीकेंट ने जो इंफॉर्मेशन मांगा है वो उसी, मतलब ज्यादातर एप्लीकेंट गवर्नमेंट सर्वेंट थे या तो वो फॉर्मर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो वहीं से इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं जहां वो सर्व करते थे। तो वो मेंशन किया है कमीशन ने बहुत ही, मतलब एज अ रीजन हैज नथिंग टू डू विद द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसके साथ पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है बट उनका पर्सनल इंटरेस्ट था, किसी का प्रमोशन का है या किसी का कोई इंक्वायरी रिलेटेड है, इस तरीके से। तीसरी एक बात जो बहुत ही मतलब लाउडली कही है कमीशन ने, ये कहा है कि उन्होंने मिसबिहेव किया ड्यूरिंग हियरिंग, या तो वो चिल्लाए या तो उन्होंने आयोग के ऊपर ही एलिगेशंस डाले। उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक अथॉरिटी को हैरेस किया है एप्लीकेंट ने, और वो रिपीटेड आरटीआई किया है और मल्टीपल आरटीआई किया है, ये दोनों तरीके से वो हैरेस किया है। थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन मांगा है, वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन मांगा है, मैलिफाइड इंटेंशन दिख रहा है, मतलब यहाँ लग रहा है ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, और अथॉरिटी का टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। और फाइनली ये कहा है कि ये कमीशन की ड्यूटी बनती है कि इस तरीके का जो मिसयूज है उसको वो प्रिवेंट करें। उन्होंने कौन से ऑर्डर्स का जिक्र किया है ये 15 में, वो बार बार वही ऑर्डर्स है। एक आदित्य बंदोपाध्याय का ऑर्डर है, एक ऑर्डर है जो केसी विजय कुमारन वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला, एक है शकील सफी वर्सेस पीआईओ प्रेमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। फिर अगर हम कोर्ट के ऑर्डर्स देखें तो आदित्य बंदोपाध्याय केस का ऑर्डर है, मद्रास का केस का ऑर्डर है, न्यूटन ठाकुर वर्सेस डीओपीटी वाला ऑर्डर है जहां उनको वार्निंग दी थी कि आप जुडिशियली इसका इस्तेमाल करोगे। ये ज्यादातर, और एक कुरैशी ऑर्डर है, एनडी कुरैशी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक हरियाणा नहीं है सॉरी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर है जो 19 सिटीजन को ब्लैकलिस्ट करता है। तो ये ऑर्डर सभी ऑर्डर्स में बारी बारी इस्तेमाल हुए हैं, जिसको लेके फिर बैन हुआ है। ऑर्डर ने इंफॉर्मेशन के बारे में क्या कहा है, ज्यादातर लोगों ने अपने जो ग्रीवेंसेस थे वो डिपार्टमेंट में डाले थे, उसके बाद आरटीआई लगाई थी कि ये हमारे ग्रीवेंसेस के ऊपर या हमारी मांग के ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, बस यही इंफॉर्मेशन कंपोनेंट ज्यादातर एप्लीकेशंस में हमें दिखाई देता है। तो वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड उस ऑर्डर में क्या है, तो पार्शियल इंफॉर्मेशन एक पीआईओ में दिया है, 3 केसेस में दिया है, रेस्ट ऑल में इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ भी बोला नहीं गया है। ऑर्डर ऑल्सो डज नॉट टॉक अबाउट कि इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, एक ही जगह से थर्ड पार्टी है ऐसे कहा है, बट नहीं देनी चाहिए ऐसा नहीं कहा है। ये कहा है कि सिटीजन्स को राइट टू रिपीट नहीं है, ये बार बार कहा है ऑलमोस्ट एवरी ऑर्डर में कि वो एक ही इंफॉर्मेशन बार बार नहीं मांग सकते। हालांकि सिटीजन ने ये कहा है कि हमें इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं, इसकी वजह से हम बार बार आरटीआई डाल रहे थे।
ये पीआईओ को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस इंसान का आपको पहले या आगे वाले कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन को आपको जवाब नहीं देना है, और एपेलेट अथॉरिटी को ये कहा है कि आप इनका कोई भी अपील आज से हियरिंग कंडक्ट करके आप आगे उसको नहीं चलाओगे, इस तरीके से कहा है। अदर ऑब्जर्वेशंस बहुत किए हैं कमीशन ने हर एक ऑर्डर में, जिसमें ये कैंटेकरस शब्द मतलब विकृत मानस वाले ये बहुत यूज किया है। एक में ऐसा कहा है कि ये एप्लीकेंट कमीशन के लिए ही प्रॉब्लम बन चुका है, ये एक ऑर्डर में कहा है। सिटीजन हैरेस कर रहा है पब्लिक अथॉरिटी को थ्रेटन कर रहा है, उनके ऊपर दबाव ला रहा है, उनको काम करने का भी मतलब एक माहौल नहीं रहा कि वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उन एप्लीकेंट के ऊपर कोई ना कोई दूसरी बात को लेके या तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है या तो कोई केस डाला हुआ है, और एप्लीकेंट खुद ही वायोलेटर ऑफ द लॉ है, नॉट आरटीआई, सम अदर लॉ, लाइक एक ने इलीगल पोजेशन ऑफ क्वार्टर वाला एलिगेशन है उसके सामने, एक इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का एलिगेशन है। दीज आर ऑल एलिगेशंस हियर। मैं इतना ही कहूंगी कि ये आईसी ने पीआईओ ने जो सबमिशंस किए हैं उसके ऊपर रिलाय होकर ये ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उन्होंने इंडिपेंडेंटली उसमें कोई और डेटा मंगवाया हो ऐसे ऑर्डर में आता नहीं है। अभी तक क्या हुआ है इस मुद्दों में, ये मेरी लास्ट स्लाइड होगी। इस मुद्दे में हमने जब ये पहली बार ऑर्डर जब आया था तब आरटीआई एक्टिविस्ट ऑफ गुजरात मिलके एक रिप्रेजेंटेशन किया था कमीशन को, और उनको रिक्वेस्ट किया था कि इस तरीके से ये ऑर्डर्स ना करें। उसके बाद एमईजीपी ने गवर्नर ऑफ गुजरात को एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये इस तरीके से हो रहा है। आरटीआई एकता मंच करके जो गुजरात का एक ग्रुप है, उसमें उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के साथ रूबरू मुलाकात में इसको पर्सनली डिस्कस किया, वेयर ही सेड दैट कि हम लोगों को पावर है और हमने जो किया है वो ठीक किया है। एक कैंपेन आरटीआई एकता मंच और आरटीआई एक्टिविस्ट गुजरात ने उठाया कि जहां इन दो कमिश्नर्स जिन्होंने 10 एप्लीकेंट को ये बैन किया है, उसमें अगर हमारा केस आता है तो हम ये कहते हैं चीफ को कि हमें दूसरे कोई कोर्ट में ट्रांसफर करें हमारा, एक तरीके से बॉयकॉटिंग ऑफ दिस टू कोर्ट, ये एक सिटीजन ने कैंपेन उठाया था। ये हुआ है। एमईजीपी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एक पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में जो डिसमिस की थी विद पेनल्टी ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज नॉट पीआईएल, लोकस टेंडाई का इश्यू आया था, हमने पीआईएल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, परमिशन देने के लिए वो डिनाई कर दी गई। हमने उसके लिए रिवीजन पे गए हैं और आज ही उसका हियरिंग शाम को अभी चल रहा है। इसके बीच में और एक बात हुई है, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने आरटीआई एप्लीकेंट को बैन करना या ब्लैकलिस्ट करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कहा है। और ये कैसे हुआ, तो 15/11/2021 को एक आंध्र प्रदेश कमीशन ने ऑर्डर किया था एक डिपार्टमेंट को कि इस एप्लीकेंट का कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन आप आंसर नहीं करोगे, और उस ऑर्डर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैड मेड अ सर्कुलर कि इस एप्लीकेंट का कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस सर्कुलर को चैलेंज किया था और उसमें आंध्र प्रदेश कमीशन ने 24 मार्च 2022 को बहुत ही क्लियरली कहा है कि बैन ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। हम आज के डिस्कशन से यही आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें एक गाइडेंस मिलेगा कि हम इस मुद्दे को कैसे उठाएं। थैंक यू अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया पंक्ति for providing a summary of some of these orders of information commissions which we are going to discuss today. पंक्ति ने हमारे साथ कुछ इंफॉर्मेशन कमीशंस के जो ऑर्डर्स आए हैं जिन्हें हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनकी समरी को शेयर किया है। बड़े सवाल इन ऑर्डर्स की समरी से भी हम समझ सकते हैं जो उठ रहे हैं। पहली चीज ये है, जैसा मैंने कहा कि ये कहा गया है कि सूचना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। कानून को अगर हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पर कानून में नहीं लिखा है कि किसी को भी बैन किया जा सकता है, किसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वो सूचना नहीं मांग सकते। ऐसा पावर इंफॉर्मेशन कमीशन को कहीं पर कानून में नहीं दिया गया है। ये जो बार बार बात पंक्ति ने कहा कि कहा जाता है कि गलत उपयोग हो रहा है कानून का, ब्लैकमेल हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सूचना के अधिकार कानून में लोग के
केवल सूचना मांग सकते हैं, डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट मांगने से क्या ब्लैकमेल हो सकता है? या तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार में कुछ गलत हो रहा था, भ्रष्टाचार हो रहा था, और सूचना निकाल कर फिर कोई उन अधिकारी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है कि सूचना जो है वो पर्दे के पीछे होनी ही नहीं चाहिए। अगर सूचना खुले में होगी तो भ्रष्टाचार, अनियमितताएं होंगी ही नहीं, और अगर कहीं पर हो रही हैं उन्हें वैसे ही रुकना चाहिए। तो क्या सूचना के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? लोगों के उसको इस्तेमाल करने से बंद कर देना चाहिए? और आज अब हम अपने पैनलिस्ट से ये बात सुनेंगे कि उन्हें क्या लगता है इन सभी ऑर्डर्स को देखते हुए कि क्या ये ऑर्डर्स लीगल हैं, क्या ये जायज हैं ऑर्डर्स, कानून में क्या इनकी कोई जगह है? और कमिशंस जब इस तरीके के ऑर्डर्स देते हैं तो पंक्ति ने कहा कि उन्हें कैसे देखने की जरूरत है और उन पर क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी वजाहत हबीबुल्ला जी को, जो कि हमारे देश में सूचना का अधिकार कानून जब आया और केंद्रीय सूचना आयोग बना तो उसके सबसे पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। वेलकम मिस्टर हबीबुल्ला, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगले 12 मिनट में अपनी बात प्लीज हमारे साथ शेयर। धन्यवाद अंजलि जी, जी बहुत सब और सारे जो मित्र हैं, आपको सब मेरी शुभकामनाएं हैं। पहले तो इस बारे में जैसे अंजलि जी ने कहा, यह अधिकार जो है, ये RTI जिसको कहते हैं, संक्षिप्त में कहा जाता है, यह अधिकार, और जैसे अंजलि ने कहा बार बार, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के नतीजे में, और ये अधिनियम भी एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बना था कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, अगर किसी आयोग ने ये निर्णय कर लिया कि ये अधिकार से किसी को मुक्त कर दिया जाएगा, किसी नागरिक को, किसी भारतीय नागरिक को, उसकी वजह देने की आवश्यकता है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या एक सूचना आयुक्त को ये अधिकार है, जो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं, और सूचना आयुक्त तो न्यायालय है ही नहीं, ये जिसको क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी कहते हैं वे है। और इसका इख्तियार ये है कि जो प्रशासनिक नियम है, याद रखिए, प्रशासनिक नियम जो है उनको किस प्रकार लागू किया जाएगा। क्या ये एक प्रशासनिक नियम है? यह एक संवैधानिक अधिकार है। सेक्शन 19(1)(a, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। अब देखिए, बहुत सारे मिसाल दिए गए हैं कि एक केस में ऐसे कहा, वैसे केस, दूसरे केस में ऐसे कहा। एक केस जो मेरे सामने इस समय है, जिसके हस्ताक्षर हैं गुजरात के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, मानिए ये कोई SS चन्नी साहब हैं, पवन कुमार सिंगला है और हेमिंदर सिंह है। अब अगर ये अधिकारी अशिक्षित होते तो मैं कहता कि इनको माफ कर दिया जाए, परंतु इस निर्णय से ये स्पष्ट है। निर्णय बहुत तरीकों से, बहुत समझ और सोच के साथ लिखा गया है। इसमें जिसने सूचना मांगी है, बहुत भारी सूचना लिखा है कि मांगी है, और फिर जब सूचना तैयार कर ली गई तो फिर वो लेने आया नहीं, क्योंकि उसमें जब फी बताई गई कि वो ज्यादा थी तो वो आया नहीं, और फिर वो प्रस्तुत नहीं हुआ।
CIC की हियरिंग में, अब बात यह है कि CIC की हियरिंग में प्रस्तुत होना ये कोई लाजमी बात नहीं है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है. An appellant may be present. He may or may not be represented by a lawyer. और वकील भी उनका ऐसा हो जो लाइसेंस वकील हो या ना हो. He can be simply a representative. अगर ये भी नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि आयुक्त को ये अधिकार हो गया कि वह अस्यूम कर ले कि जो जिसने प्रार्थना की है वो अब उत्तर चाहता ही नहीं है, या उसने कुछ मिस्चिफ किया हुआ ना. इस बारे में बहुत बहस हुई. जब मैं था, जैसे कहा गया, सबसे पहले जब ये केंद्रीय सूचना आयुक्त बना तो मैं उसका मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ था. इसमें बहुत बहस हुई कि कोई ऐसी सूचना है जो कि मांगना ही नहीं चाहिए किसी को. अब इसमें यह जो RTI कानून है, अधिनियम है, ये स्पष्ट है. स्पष्ट इस प्रकार से है कि क्या नहीं मांगा जा सकता है, वो धारा 8 में स्पष्ट लिखा हुआ है. उसके अतिरिक्त जो भी सूचना सरकार से मांगी गई, सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सूचना दे. हाँ, अगर उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे तो पैसे मांग के दे. इस केस में जब तक कि उसने स्वीकार नहीं किया था कि हाँ मैं ये पैसा दूंगा, उनको किसने कहा हुआ था कि आप ये सारी सूचना तैयार कर लीजिए. एक तो आपने अपनी गलती से सूचना तैयार कर ली, फिर कहता हमारा खर्चा हो गया, और फिर कहता है चला उन पे लगाएंगे. ये गलती तो आपकी. दूसरी गलती, अगर धारा 4(1)(b) के तहत सारी सूचना जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है वैसे कानून के तहत, अधिनियम के तहत, अगर वो सारी आपकी वेबसाइट पे आप पब्लिश कर देते तो ये सूचना की प्रार्थना आने का मतलब ही नहीं था. तो गलती हुजूर आला चन्नी साहब आपकी थी, आपकी सरकार की थी. खैर, वो बात अब छोड़िए. Let me come to the key paragraph in this decision, which in fact dictates, is drawn from the other examples which have come. The Honorable Information Commission, State Information Commission holds, the Commission considers its primary duty to see that such blatant misuse of RTI Act should not be allowed further, and such a tendency needs to be appropriately curbed to secure faith of the public in this Sunshine Act. अब कौन सा अधिनियम है जो ये कहता है कि सूचना आयुक्त का ये प्राइमरी ड्यूटी है टू सी सच ब्लेटेंट मिसयूज? कहाँ है? कौन सा क्लॉज, कौन की धारा है? खैर, वो बात छोड़िए. ब्लेटेंट मिसयूज कौन इस पे निर्णय लेगा कि ये ब्लेटेंट मिसयूज है या नहीं है? इसलिए कि कानून के RTI एक्ट में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पूछें कि एक जो सूचना मांग रहा है, मांगने वाला है, वो क्यों मांग रहा है. स्पेसिफिकली, you can't ask for reasons. तो फिर आप कैसे ये निर्णय कर सकते हैं कि ब्लेटेंट मिसयूज है जो आपको पता ही नहीं है कि क्यों मांग रहे हैं? हाँ, आप कुछ अपने दिमाग पे चला के हाँ इसलिए मांग रहे होंगे और इसलिए ब्लेटेंट मिसयूज है. That I'm afraid will not stand the test of law. अच्छा, फिर remove obstacles in the smooth functioning of public authorities which would eventually prevent public authorities from focusing on the main. What is the major obstacle? The major obstacle is not asking for information. The major obstacle is that you have not made the information accessible to every Indian citizen by any means possible. Read 4(1)(b). Please go and read 4(1)(b). All information which is accessible to the public should be accessible on computers,
You have not done that. आपने किया नहीं, तो फिर आप ब्लेम लगा रहे हैं applicant के ऊपर. In the instant case, the applicant's act of running running riot with filing repeated applications seeking inane and voluminous information has become counterproductive of public interest, which cannot be allowed at all. Why counterproductive public interest? क्योंकि public जो servants हैं उन्हें अपना काम नहीं किया, लिहाजा उनसे सूचना मांगना is against the public interest. कुछ तो यहाँ होना चाहिए ना, कुछ अकल कि नहीं, थोड़ी बहुत. Anyway, we see this act, his act is a misuse, rather abuse of the RT Act, unsavory motives. Motives जो आपको पता ही नहीं है, आपने unsavory करार दे दिया. Very good, very good. अंग्रेजी तो अच्छी है. In the given circumstances, खैर अंग्रेजी में है नहीं, गुजराती में है, तो मैं वो withdraw करता हूँ. In the given circumstances, we are constrained to disqualify the appellant from seeking information in future. ये आपने कैसे किया? किस कानून के तहत किससे किया? एक अधिकार जो एक संवैधानिक अधिकार है, and only a constitutional court could have held that this right can be denied to any citizen of India. आपने कैसे किया? This is absurd judgment. It has relied on two cases. One is the case of CBSE versus Aditya Bandyopadhyay, और दूसरा है दिल्ली हाई कोर्ट का. Now everybody knows the CBSE case, the judgment is altogether flawed. Instead of going by these judgments, please, my appeal to the State Information Commissioners, please go by the orders of the Supreme Court with regard to the constitutional nature of the Right to Information Act. और फिर बाकी जितने भी आपके निर्णय बनेंगे वो उसी हिसाब से बन पाएंगे. वरना अगर आप समझते हैं कि this is some municipal law or something like that, then you are not doing justice to your position. Please understand that. You are letting down your position as information commissioners. तो यही मुझे आपसे कहना है और मेरी अपील है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से कि आप चौकीदार हैं सूचना की. कौन सी सूचना? ये नहीं कि सूचना जो सरकार ने रखी, क्योंकि अधिनियम से ये स्पष्ट है कि जो भी सरकार के पास सूचना है that is held in trust for the public. अंत में एक लोकतंत्र में सरकार किसकी है? उनकी नहीं. जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पब्लिक के, जिनको इलेक्ट करके लाया जाता है, उनकी है, जो वोट डाल के उनको इलेक्ट करते. वो कौन है? भारतीय नागरिक. ये समझ के रखिए. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हबीबुल्लाह आपका. और आपने ज्यादातर अपनी बात हिंदी में रखी. मैं थोड़ा सा एक अनुवाद प्रोवाइड कर देती हूँ बिकॉज पीपल हैव जॉइंड अस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. आई थिंक the point that you made, and you made it very, very forcefully and powerfully, is that the right to information is a fundamental constitutional right of the people of our country. We are a democracy. हम लोकतंत्र हैं. ऐसे में जो भी सूचना, जब हम कहते हैं कि ये सरकार हमारी है, हम ही बनाते हैं सरकार को, तो ऐसे में जो भी सूचना सरकार के पास है वो हमारी सूचना है. हमें अधिकार है वो सूचना लेने का. और आज के माहौल में जहां पर सवाल पूछने पर एक बड़ा प्रतिबंध वैसे ही लग रहा है, वो जो स्पेस है वो श्रिंक हो रही है. ये एक बहुत ही डेंजरस, खतरनाक ट्रेंड हो सकता है. In a democracy like ours, people are the ultimate sovereign. We say that the government is of, by, and for the people. And in that context, we need to understand the right to information law. The government is holding information
on behalf of the people of this country. And therefore, these kind of orders of the Punjab Information Commission, which you read out for us, and the Gujarat Information Commission's orders banning people from using the right to information are very, very dangerous. You talked about how the information commissions are quasi-judicial bodies, and they certainly are in no position and have no powers under any law whatsoever to ban people from exercising their fundamental right to information. You went so far as to say that even the Supreme Court of India does not have that right. You also talked to us about how under the law, there is no, it's not mandatory for anyone to be present in a hearing. And the term that is used is that an applicant may be present. It does not say anywhere that the applicant has to be present. And therefore, repeatedly in several orders which ban people from using the right to information, when the commission notes that the applicant did not even appear for the hearing, and that seems to contribute to banning that applicant, it's a huge problem. Section 8 of the Right to Information law lists out the exemptions. What is the information that we cannot have? But apart from the information that is listed in Section 8 and 9, we can seek information. And even for those exempted information categories, there are certain exceptions to those exemptions. You also brought our attention to Section 4 of the RTI Act, which I think is so significant because under the law, people don't have to necessarily resort to filing RTI applications. They should be provided information proactively by the government without them having to take the trouble of even filing an RTI application. And in fact, if I may add here, our research has shown that 70% of the RTI applications that are filed in India are such that information should have been provided proactively to people. They should not have had to file those applications to access information. So what you are saying is that governments are failing in their duty, in their obligation to provide information under Section 4, and Section 4(1)(b) is not being complied with either, which basically ensures that people should have access in the most accessible manner and in the local language, and information is not being provided, and therefore people are filing applications. Commissions need to look at that aspect very carefully. And when they're saying that repeatedly information is being sought, it needs to be understood that information is not being provided where it should be by the government on its own under Section 4. And you brought our attention to some comments and some grounds that have been provided in several orders of the information commissions to ban people from using their right to information, where they say that it's the primary duty of information commissions to stop misuse of the act. So you've really very strongly opposed this because you do not think that the information commissioner's primary duty is to oppose or stop misuse of the act, and who is going to decide what is misuse of the act. And you also talked to us about the various orders of the judiciary, the Supreme Court, and in some cases the high courts, which have been referred to as well, and said that some of these decisions, these judgments are not, they are fully misplaced, and therefore we need, and commissions need, to be very careful that they're upholding the letter and spirit of the Right to Information Act and ensuring that people are able to access the information that they are supposed to in a democracy. Thank you so very much, Mr. Habibullah. And I'm now going to request Mr. Yashovardhan Azad. मैं यशोवर्धन आजाद जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अब अपनी बात रखें अगले 12 मिनट में। यशोवर्धन आजाद जी को हम सभी जानते हैं, वो केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्त थे, अपने तमाम ऑर्डर्स दिए हैं जो कि प्रोग्रेसिव ऑर्डर्स रहे हैं, और हम आप
से सुनना चाहेंगे कि ये जो सिलसिला चल रहा है, शुरू हुआ है, जिसे हमने काफी देर तक सोचा कि हम इसके ऊपर बहस नहीं करते, शायद ये 1-2 ही केसेस होंगे, पर अब जबकि ये केसेस बढ़ रहे हैं, जहां कमीशंस कहने लगे हैं कि हम आपको प्रतिबंधित कर देंगे, आप सूचना का अधिकार नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें ये लगा कि बहुत जरूरी है कि इस पर चर्चा हो और आप इस पे अपनी बात रखें। द फ्लोर इज। धन्यवाद। अपने साथ सारे प्रतिष्ठित वक्ताओं को नमस्कार। Can you hear me now? Yes, we Yes, yes, you're clear. Yeah. please can. मेरे साथ सारे जो प्रतिष्ठित वक्ता हैं उनको नमस्कार। इस चर्चा में सम्मिलित सारे व्यक्तिगण जो आए हैं, सम्मानित व्यक्तिगण, उनको भी मेरा नमस्कार। और NCPRI की अंजलि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि NCPRI का योगदान बहुत ही अहम रहा है सूचना राइट्स की दिशा में, और आज से नहीं बल्कि दशकों से। मुझे याद है उन्होंने जो पहला सर्वे किया था और RTI रिजीम का असेसमेंट किया था, उसमें कई ऐसी बातें उभरी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहीं सारे कमीशंस को और वक्ताओं को, और मैं समझता हूँ जो जितने पब्लिक अथॉरिटीज़ थे उनको भी। देखिए, मौलिक अधिकारों की चर्चा हो चुकी है काफ़ी विस्तार से, अंजलि जी ने भी बताया है, वजाहत जी ने भी उस पर काफ़ी अपनी टिप्पणी दी है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। ये सर्वविदित है कि सनशाइन लेजिस्लेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि यह संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और बल्कि कमीशंस का काम ये है कि देखें कि ये अधिकार सुरक्षित रहे, और ताकि और हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो कमीशन के पास अपनी परेशानियां को लेकर आए। मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि वेक्सेशियस और फ्रिवलस एप्लीकेशंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बारे में जो चर्चा हुई है, चाहे पार्लियामेंट में हुई है, लॉ मेकर्स ने भी इसके बारे में कहा है, और बल्कि एक तरह का माहौल बन गया है, ब्यूरोक्रेसी इसके बारे में कमेंट करती है। मेरा ये कहना है कि अगर एक्चुअली इसका परसेंटेज देखा जाए तो उतना नहीं है जितना विशालकाय इसको बना दिया गया है। ये एक ऐसी समस्या है जो मैनेजेबल है। मैं ये कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कमिश्नरों से कि हर कानून का दुरुपयोग होता है, और आवश्यक, बिल्कुल अवश्य है। मैं उनकी भावना को समझता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे विभाग डील किए थे जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे MCD है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जितने पब्लिक डिलीवरी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको सबसे ज्यादा ऐसी समस्या मिलेगी। लोग छोटी छोटी कारणों से आते हैं, दुखी होकर आते हैं, और अंत में जब उन्हें सही जवाब नहीं मिलता है या उनका अपना कार्य भी नहीं होता है, तो व्यक्ति द्वेष के कारण भी वो बार बार ऐसी दरखास्त लेते हैं। लेकिन क्या इस समस्या का निदान उनको प्रतिबंधित करना है? क्या कमिश्नर ऐसे बड़े ओहदे पर आकर हम इस छोटी सी एक प्रतिबंधित कार्रवाई करें? क्या ये मैनेजेबल नहीं है? 100% है। एक बार में 450 एप्लीकेशन मैंने एक समूह में भी किए हैं, 6 घंटे की हियरिंग के साथ, ताकि वही अपेलेंट खुद भी इतना थक गया कि गाली देकर बाहर चला गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एप्लीकेशंस आने बंद हो गए। एक तरीका है, ये मेरा सुझाव है, अनुनय विनय है कि हम अपने ओहदे का, हम अपने कमीशन का इस्तेमाल एक प्रोडक्टिव वे में करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मैं ये कानून के धाराओं के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि सब लोगों ने किया है और भी लोग करेंगे। मुझे ये आभास हो रहा है कि जैसे सरकार का जो तंत्र चलता है
उसमें बू आती है एक अंडर सेक्रेटरी की, इसका जवाब तो नहीं बन सकता, इसका जवाब तो बहुत मुश्किल है, और इसका तो बन ही नहीं सकता। तो क्या हम उसी तंत्र के लिए काम कर रहे हैं कि हम जानकारी दे नहीं सकते? मैंने कुछ यहां पर आदेश देखे विभागीय जांच के संदर्भ में। वो व्यक्ति कह रहा है कि मीटर रीडिंग के बारे में जब मेरे को चार्जशीट दिया गया है, मेरे खिलाफ विभागीय जांच हो रही है, तो क्या ऐसा ही आरोप जो दूसरे लोगों पर हुआ है, क्या उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है कि नहीं? और फट से उसमें 81J कोट कर दिया गया, ये तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, और बड़े बड़े ये दे दिए गए। मुझे भी मालूम है कनारा बैंक और जितने भी ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कुछ जजमेंट्स इस प्रकार के अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुए हैं। लेकिन क्या विभागीय जांच में किसी व्यक्ति को हक नहीं है कि वो सारी ऐसी जानकारी का इस्तेमाल करे जिससे कि उसका बचाव हो? ये तो उसका मौलिक अधिकार है, ये तो उसका संवैधानिक अधिकार है। तो क्या पब्लिक इंटरेस्ट में, उसके इंटरेस्ट में, क्या आप उसे ये जानकारी नहीं देंगे? मेरा ये कहना है कि अगर आप एक किसी नेगेटिव एटीट्यूड से चलेंगे तो कोई भी जानकारी देना उचित नहीं है। ऐसे ऐसे जजमेंट्स आए हैं कि आप जजमेंट्स अगर कोट करते रहें तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ठीक तरह से प्रियम्बल को पढ़ें तो प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है पारदर्शिता, और प्रियम्बल कहता है जिम्मेवारी निर्दिष्ट करना। तो हम कैसे इसको करेंगे? कुछ लोग, कुछ कमिश्नर ये कहते हैं आप वाई प्रश्न पूछ नहीं सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? उसी को दूसरे तरह से अगर पूछा जाए तो आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि क्या इस संबंध में जानकारी दी जाए कि ये क्यों नहीं हो सकता। और इसलिए मैं समझता हूं कुछ चीजें जो हैं, मैं अभी कहना चाहूंगा, सरकार किसी तरह से मुझे लगता है हताश हो गई। इसलिए हो गई है क्योंकि अभी भी आरटीआई रिजीम में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक होना चाहिए सरकार को, वो नहीं हो सका है। 4(1) की जो जानकारी है वो नहीं आती। धारा 4 में जितनी जानकारी आनी चाहिए, और मैं ये भी कहता हूं कि सारी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जो मुख्य मुख्य जानकारी है जिसके बारे में अगर आप एनालाइज करें क्वेश्चंस को तो आपको मालूम है किस तरह की जानकारी पोस्ट करनी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। मैंने ये भी देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं 300 पेज की बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी है, वो मांग रहे हैं। तो क्या 300 पेज की डिटेल इंक्वायरी नहीं दी जा सकती? वो पढ़ के पता लगा सकते हैं कि इसमें से कौन कौन सी जानकारी चाहिए, कौन कौन सी नहीं चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि 300 पेज में बहुत सारी जानकारी दूसरे लोगों की, वो हम कैसे दे दें? तो उसको रिडाक्ट कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? जो जानकारी उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपको ये देने में हर्ज है, कुछ तो ऐसी जानकारी है जो जिसके बारे में वो खुद ही कहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दे दीजिए। मैं समझता हूं ये छोटी छोटी जो बाधाएं जो हम बिना मतलब का लाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुछ ऑर्डर्स में जो देख रहा हूं कि कुछ लोगों को बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया, कुछ लोगों को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया साल के लिए, कुछ लोगों को किसी विषय पे बैन कर दिया। किसी कानून बड़ा स्पष्ट है कि अगर किसी वही जानकारी अगर बार बार पूछी जा रही है तो उसके बारे में आप बिल्कुल आराम से निर्णय ले सकते हैं। और वो बदल बदल कर अगर प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं तो उनको एक समूह में आप डील कर सकते हैं। तो इस पे एक बैन करना लगता है कि एक तानाशाह का ये आदेश है, और ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के माहौल में, डिजिटल एज में, ऐसी कोई समस्या या कोई ऐसी कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। कोई भी ऐसी जानकारी है, अप्रोच बल्कि यह होना चाहिए हम किस तरह आपको जानकारी दें। भारत का प्रजातंत्र
आज एक ऐसे मोड़ पे है जहां सारी दुनिया हमारे प्रजातंत्र को देख रही है, और आपके जो निर्णय हैं वो यही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स भी पढ़े जाते हैं, वॉशिंगटन पोस्ट में भी देखे जाते हैं, लंदन में भी उनका असेसमेंट होता है, और उसके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमेंट कर रही, और इस तरह के निर्णय जरूर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में आएंगे, और भारतवर्ष जिसका राइट सनशाइन लेजिस्लेशन यूएन द्वारा समझा गया था कि सबसे सशक्त है, वन ऑफ द बेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड, उसकी जगहसाई होगी। अतः अंत में मेरा ये निवेदन रहेगा सूचना आयुक्तों से कि आप एक ऐसे बड़े ओहदे पे हैं जहां जनता आपकी ओर देख रही है, जनता आपसे अपेक्षा करती है, आप एक क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी हैं, कि आपको सबसे पहले आरटीआई एक्ट का प्रिएम्बल देखना चाहिए, और कोई भी जानकारी जो है वो पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, उनकी पारदर्शिता के बारे में है, जिम्मेवारी निर्दिष्ट करने के बारे में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आज आपकी जो जिम्मेवारी है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सरकार के आदेश से आपका ओहदा भी कम हो गया है, आपके टेन्योर के बारे में भी मालूम नहीं है। क्या आप अपनी अथॉरिटी वापस एस्टैब्लिश कर सकते हैं? क्या आप सेक्रेटरीज को बुला सकते हैं? क्योंकि जहां भी जानकारी आप देखेंगे 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट के बारे में है, कभी भी वो केस हियरिंग सही से नहीं होता है, क्योंकि जितने भी पीआईओज हैं वो सही जानकारी लेके नहीं आते हैं और उनको जानकारी नहीं मालूम होती। ऐसे में ये आप पे निर्भर है कि आप सूचना अधिकार की तरफ रहें या आप इन छोटी छोटी बात पे अपना समय बेकार करें कि किस तरह प्रतिबंधित किया जाए, किस तरह विकृत मानसिकता की बात हो। मैं समझता हूं एक पॉजिटिव ये लेकर चलना चाहिए, और यही मैं कहूंगा, मेरी अपील रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आजाद। आपने बहुत ही सरल भाषा में और नॉन टेक्निकल भाषा में अपनी बात रखी, और बिल्कुल समझ में आई कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में। I will very briefly translate also what Mr. Azad said, and also add a few things so that we can take this discussion forward, building on what Mr. Habibullah and Mr. Azad have talked about. What you said very clearly is that you believe that almost all laws can be misused, and that's true. We've seen how, in many cases, there are allegations that the dowry law has been misused or some other laws have been misused. So you believe that it's perfectly possible that some laws are misused, and the right to information law might also sometimes be misused by some people. But the very important issue that you raised is that we need to understand the extent of this misuse. If there is frivolous, vexatious kind of applications, then what is the extent of this and how does this need to be tackled? In fact, here, if I may add, our research has shown that less than 1% RTI applications can be termed frivolous or vexatious by any stretch of imagination. Yes. So it's absolutely, we understand that even if there is some attempt to misuse a law, the right to information law, the use of it has been so powerful and the misuse so limited that the commissions need to understand and recognize this for what the use and the implementation shows. And according to you, the way to deal with this is not the way in which the commissions in Gujarat and Punjab, and specifically in the orders that we are discussing today, seem to want to deal with it. You said that in your own experience, when some of these kind of cases came,
where somebody you felt was trying to misuse the law, to harass a public authority, you clubbed those many cases together and disposed of those cases in one go, so that it wasn't a colossal waste of time of the commission or of the public authority. You said to us that it is very important, and in fact, this is something that you reached out to the existing commissioners also and said that it is very important to make sure that the authority, the power, the responsibility that is vested in the commissioners must not be misused at any point in time. And this is a very, very important responsibility जो सूचना आयुक्त हैं हमारे देश में, उनको जो responsibility दी गई है कि सूचना का अधिकार लोगों का उन्हें हासिल हो, वो बहुत ही जरूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे वो बहुत ध्यान से उस अपने काम को वो करें। और आपका ये भी कहना था कि द इंडिपेंडेंस ऑफ कमिश्नर्स आल्सो समवेयर इज इन क्वेश्चन today, and especially when we look at the kind of orders that are coming out of this nature. You talked about how public servants are using the right to information law, and in many of these orders it appears that there is almost an irritation, and in fact there is a motive that is being imputed to a public servant using the right to information law. And here you said that they have a right to also protect their own rights and fundamental rights, and there is absolutely nothing in the law to bar public servants and government servants from also seeking information. In fact, you relied on one of the orders where somebody has been charge sheeted for a certain action, and they have said that they are using the right to information law to see why others who have done similar things are not being charge sheeted. So you said that it is very well within their right to ask for such information. And here again, I will bring in some of the hard research that has been done. We looked at the number of RTI applications that have been filed by government servants themselves, because this has always been mentioned as a point of concern, and we found that less than 5% of RTI applications across the country have ever been filed by public servants. So हमारे शोध ने clearly दिखाया है कि 5% से भी कम ऐसी सूचना के अधिकार की अर्जियां होती हैं जो कि सरकारी अधिकारी खुद फाइल करते हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है कि वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, बल्कि कई तरीके से तो ये समझ में आता है that what a sad state of affairs it is that public servants themselves are having to resort to the use of the right to information law to access information from the government. You also talked about voluminous information, and in several cases it was said that why is such large information being sought? You alluded to section 7(9). You didn't use that, that specific, you didn't use the name of that specific section, but you basically said that in the law, there are various possibilities. In fact, information can be provided in any form. If information sought would divert the resources of a public authority disproportionately, inspection can be provided, and you said that section 4, again you talked about section 4 of the law, which can be used to provide a large amount of information, especially voluminous information which is in public interest, information which has been digitized. And you said that in today's day and age, there is hardly any kind of information that the government, and with its emphasis on digital India, that we should hear that the government is not able to provide, at least in an electronic digital form, if it so wishes. And therefore, commissioners have a responsibility to make sure that they don't give these kind of orders of banning people simply because they're asking for information which might be voluminous. You talked about the larger context, the larger democratic context and crisis that our country faces today. And in fact, you said that these kind of orders reflect a certain kind of closed fascist thinking. This can't be termed democratic. Today, at a time when our democracy, there are several
questions on how well our democratic institutions are functioning, how robust our democratic framework is. These kind of orders really reflect commissions in a very, very poor light, and they're likely to be analyzed, read, and understood internationally. And therefore, commissioners in all information commissions need to keep this in mind when they're passing orders, and in fact should be guided by the preamble of the Right to Information Act, and which really says that this is a tool for ensuring transparency, for ensuring accountability of government offices, of those in power, to the people of the country in a democracy. You also said that after the information law, the RTI law has been amended, and unfortunately the government has empowered itself, the central government has empowered itself to decide the tenure and the salaries and terms of service of information commissioners. Somewhere it is probably even more imperative today that commissioners understand that their actions, their decisions be seen as being independent and not shielding any government in power. I think that that's a very, very important thing for us to remember. And you said that when the Punjab and Gujarat information commissions are passing these kind of orders, or any information commissioner is passing these kind of orders, they need to keep this in mind. And in fact, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी, आपने जैसे कहा कि आज बहुत जरूरी है कि जो सूचना आयुक्त हैं आयोगों में, वो ये समझें कि जो उनके जो ऑर्डर्स हैं उन्हें केवल उनकी स्टेट में नहीं, उनके हमारे देश में नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखा जा रहा है कि वो कितने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को, लोकतांत्रिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड कर रहे हैं। ऐसे में जब पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की चिट्ठी हम देखते हैं जिसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जो कि इस लोगों के अधिकार को बढ़ावा देती हो, बल्कि सारे ऐसे अपने ऑर्डर्स को शेयर किया है सब कमीशंस के साथ में जहां पर लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन आजाद जी, आपने अपनी बातें हमारे साथ इतनी कैंडिडली और इतने कॉम्प्रिहेंसिवली शेयर करी। आई थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट मिस्टर शैलेश गांधी। शैलेश जी को हम सब जानते हैं, शैलेश सूचना के अधिकार के सिपाही हैं, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं केंद्र सूचना आयोग में। शैलेश अपनी बात लगातार बोलते रहते हैं सूचना के अधिकार को सशक्त करने के लिए। और जो एक चीज शैलेश जिसकी आप चर्चा बहुत बार करते हैं, और मुझे लगता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उस पर थोड़ा सा थोड़ी रोशनी डालिए अपने 12 मिनट में, वो ये है कि जो हमारे एडजुडिकेटर्स हैं आज सूचना के अधिकार के, कि जो हमारे केसेस को डिसाइड करते हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशंस भी हैं और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी है। उनका क्या रवैया है और उससे क्या एक असर पड़ता है लोगों के सूचना के अधिकार पर? क्योंकि जैसे पंक्ति ने अपनी समरी में हमें बताया, बहुत सारे इन ऑर्डर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदित्य बंदोपाध्याय की जजमेंट हो, इकाई की जजमेंट हो, वो वाला मैटर था, उसकी जजमेंट हो, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट्स हो, उनके ऊपर रिलाय किया गया है। यहाँ तक कुछ कमिश्नर्स ने तो आर्टिकल 19(2) में जो धारा 19 है उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, मतलब आई वाज शॉक्ड टू रीड कि उन्होंने कहा है कि we in order to uphold these interests of sovereignty, decency, integrity under article 19(2), we are obliged to stop applicants from filing RTI applications। मतलब ये बिल्कुल हम लोग इसको पढ़ के ऐसी चीजों को घबरा रहे हैं कि सूचना के अधिकार के किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो ओवर टू यू शैलेश फॉर द नेक्स्ट 12 minutes to please say। पहले प्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 19(1)(a) के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, वो आज तक
जब से संविधान बना तब से आज तक न सुप्रीम कोर्ट, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, न प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किसी ने लाइफ टाइम बैन करने की कोशिश तक की, किसी ने नहीं किया ये अभूतपूर्व है। This is something which is extraordinary power they have abrogated to themselves, which is very unfortunate. I think they should take a lesson in the Constitution of India. कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि 1918 को पूरे लाइफ टाइम बैन किया हो, कोई भी नहीं। इसके साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था मैंने सुना था कि डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। So we are the rulers of this nation. We, the citizens of India, individually are the rulers of this nation, and we own everything. Therefore, RTI does not say क्या information देने. RTI says क्या information नहीं देनी, which is a small part. The rest of it, the default mode is some information देनी है citizens को. मगर इसके साथ मैं एक बड़े खेद के साथ जोड़ूंगा कि इतना ही हमें गौर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के लिए, कोर्ट के डिसीजंस के लिए। और जब तक हम वो नहीं करते हैं तब तक ये सुधार लाना मुश्किल है। कमिश्नर्स कई लोग गाइड होते हैं, और आदित्य बंदोपाध्याय का तो केस जो सब लोगों ने कोट किया है, उसने छोटा सा मैं सेंटेंस कोट करूंगा, द एक्ट शुड नॉट बी अलाउड टू बी misused or abused to become a tool to obstruct the national development and integration, or to destroy the peace, tranquility, and harmony amongst its citizens. Nor it should be converted into a tool of oppression or intimidation of honest officials striving to do their duty. ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी हो सकता है, ऐसा कहीं सुना नहीं है। और इस तरह के शब्द टेररिस्ट के लिए अगर इस्तेमाल होते तब तो मैं समझ सकता, मगर ये इस्तेमाल होने चाहिए for to citizens exercising their fundamental rights, ये मेरे सोच के बाहर है। ऐसा माहौल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदित्य बंदोपाध्याय डिसीजन ने, जिसमें कोई कारण नहीं था ये कहने के लिए। There was nothing in the decision linking it to something like this. Absolutely nothing. कोर्ट ने ऐसे ही जैसे फरमान किया, which is extremely unfortunate. And this is being used everywhere. Bad things spread faster. And I think मेरे हिसाब से RTI users and activists को भी खुलेआम इसकी निंदा करनी चाहिए। ये निंदा नहीं हो रही है क्योंकि हम जब ये आया था ये डिसीजन, तब भी हम लोगों ने सोचा था, मगर थोड़े डर के कि भाई रहने दो ये मत, पर ये सब देश इस पे जा रहा है। Second thing which I think has harmed the RTI is 3 decisions of the Supreme Court. In fact, many decisions of the Supreme Court are not in favor of transparency, not in favor of the law. But the one decision that I'd like to bring to your attention is the Girish Deshpande judgment. कानून में इस देश में सबसे बेहतर कानून दिया हमको, जिसमें यह कहा गया कि personal information which relates to personal information, the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual, provided that the information which cannot be denied to parliament or a state legislature shall not be denied to any person. मतलब वो relation personal होना चाहिए, information जातीय information, yes, even आपका नाम personal है, which has no relationship to any public activity. ये सब निकाल के गिरीश देशपांडे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जेम्प्ट, और हम जो कहते हैं वो एग्जेम्प्ट है। आर राजगोपाल के डिसीजन के खिलाफ हो गया है, और इनफैक्ट गिरीश देशपांडे का जजमेंट पर इंक्यूरियम है। इट इज नॉट अ प्रेसिडेंट, इट इज नॉट इवन लीगली साउंड। इसकी भी चर्चा बहुत हो नहीं रही है, और ये मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं काफी सालों से कि सबको पारदर्शिता दूसरे के लिए अच्छी लगती है, और ये चीज मैं RTI यूजर्स और एक्टिविस्ट में भी मैंने देखा है कि वो कहते हैं हमारी RTI नहीं बताना चाहिए, दूसरों की बताना चाहिए। आई थिंक पारदर्शिता का एक माहौल है, सरकार के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबकी है, ये समझ के हमें चलना चाहिए। प्राइवेसी का नाम लेके बेकार में विदाउट एनी बेस
आर्टिकल 19(2) डिफाइन करता है क्या सूचना मुझे नहीं दे सकते हैं या क्या प्रतिबंध डाले जा सकते हैं मेरे 19(1) के अधिकारों पे। उसमें दो ही शब्द है जो प्राइवेसी से रिलेट हो, डिसेंसी और मोरालिटी। अगर कोई सूचना देने से डिसेंसी वायलेट होती है या मोरालिटी वायलेट होती है, तब तो कुछ हद तक समझ में आता है कि भाई सूचना न दी जाए, और ऐसी सूचना पार्लियामेंट को भी नहीं देनी चाहिए। इसी वजह से ये प्रोवाइजो दिया गया है। मोस्ट जजमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, कोर्ट्स, प्रोवाइजो तो खा ही गए, वो तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। दिस इज एन इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द लॉ, and this has become the standard, the golden standard. At least 6 further Supreme Court judgments have mentioned the Aditya Bandyopadhyay judgment with approval, which is completely a wrong thing, which is becoming prevalent. And Aditya Bandyopadhyay and Girish Ramchandran Deshpande is being extensively used by commissions and PIOs also, which is understandable. I don't blame them. I think हम लोग चूक रहे हैं कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, डट के सब जगह एटलीस्ट डिस्कस तो करें। ये अगर हम नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हमारे वो खामी है। हर्षवर्धन जी ने बताया कि कुछ मिसयूज होता है, कुछ लोग रिपीटेड यूज करते हैं। सर, अगर सही तरह से रिजेक्ट होगा, और मैं ये कहता हूं कमिश्नर्स को भी ये करना चाहिए कि आदित्य गिरीश देशपांडे को नहीं फॉलो करना चाहिए। कानून क्या कहता है ये सोचना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए कि इज इट अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक एक्टिविटी और नॉट। मोस्ट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। एंड आर राजगोपाल के जजमेंट ने 1994 में ये कहा था कि फॉर पब्लिक रिकॉर्ड्स there can be no claim of privacy except in rare cases where decency or morality is being violated. इसके साथ एक जोड़ूंगा, तीसरा एक जजमेंट है जो रिसेंट है, गुजरात हाई कोर्ट रूल्स के जजमेंट। आई एम शॉक्ड। द इंपैक्ट ऑफ दैट इज आप आरटीआई एक्ट को खत्म कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इनकंसिस्टेंट शब्द का डेफिनेशन पता नहीं कौन सी डिक्शनरी से लेके आए वो। कहा कि अगर तालमेल नहीं रखता है, मगर अगर प्रोविजन है रूल्स में इंफॉर्मेशन देने का पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो वो कंसिस्टेंट माना जाएगा। This is an absurd interpretation, and this again needs to be discussed openly with citizens. And my submission is that if we do not defend our fundamental rights, I think there's something wrong with us. हम में कोई खामी है। हम लोग एक जमाने में एक फॉरेन गवर्नमेंट को वापस भेज सके थे। आज हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर हम नहीं डिफेंड कर सकते तो कुछ ना कुछ अपने में भी नुक्स है, वो नुक्स को ठीक करना चाहिए। बात हुई कि इंफॉर्मेशन कैसे देनी चाहिए, कैसे डिजिटल होना चाहिए। बहुत सिंपल सा चीज है, पेपरलेस वर्किंग अक्रॉस द नेशन। आज पंचायतों में भी कंप्यूटर्स हैं देश में और इंटरनेट कनेक्टिविटी है। मैं ये अर्ज करूंगा कि हम ये सोचें और बात करें कि पेपर नाबूद कर दो, पेपर वर्किंग ही नाबूद कर दो, एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ही ट्रांसमिट हो। इसमें करप्शन कम होगा, बहुत फर्क पड़ेगा। और रोज शाम को जो काम एक दफ्तर में होता है वो शाम को वेबसाइट पे जा सकता है, एक्सेप्ट व्हाट इज एक्सेप्ट। अगर ये करें तो इंफॉर्मेशन इजीली भी एक्सेसिबल। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, बट उनके डैशबोर्ड सिर्फ वही देख पाते हैं, जनता को नहीं दिखाते हैं। What they must understand is जनता इज द मालिक। हम कहते हैं लोकशाही, लोकशाही का मतलब है लोगों की शहंशाही। All of us must feel like badshahs or begums of this nation. That is the object of RTI to my mind. Accountability वगैरह सब ठीक है, but it is critically empowerment and getting respect for the citizen. जो भारत के नागरिक को रिस्पेक्ट नहीं मिलती सरकारी दफ्तर में, उसको वो रिस्पेक्ट मिलती है आरटीआई के जरिए। हाँ, कुछ लोग कभी चिल्लाते हैं, कोई आरटीआई यूजर अपसेट हो जाता है। मैं जब कमिश्नर साथ हूँ, मेरे ऊपर भी एक एप्लीकेंट को बहुत गुस्सा आ गया। पीआईओ नहीं था मगर निर्णय पीआईओ के फेवर में जा रहा था,
तो बाहर डफली लेके आया था, तो बाहर 1 घंटा वो डफली बजा बजा के बोल रहा था गली गली में शोर है, शैलेश गांधी चोर है। 1 घंटे के बाद वो थक गया और चले गया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा होता है या कहीं बीवी से झगड़ा किया होता है, वो आते हैं तो थोड़े गुस्सा हो जाते हैं। बट मैं समझता हूँ ये सूचना के अधिकार का कायदा हमें डिफेंड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को भी एटलीस्ट डिस्कस करना चाहिए। आई हैव नॉट सीन इवन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स प्रीवियस पास्ट मिलके डिस्कस तो करें, इनको खुलेआम डिस्कस करें कि ये गिरीश देशपांडे इज वन सॉलिटरी थिंग एंड गुजरात रूल्स जो है, गुजरात हाई कोर्ट रूल्स, इंसिडेंटली मैंने एक डिसीजन दिया था एग्जैक्टली ऑपोजिट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ दिल्ली व्हेन आई वाज कमिश्नर। एंड जो मैं आपको कंप्यूटराइज वर्किंग की बात कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है, न सिर्फ पॉसिबल है, मैंने 10 साल पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था कमीशन में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश। एंड आपने अपनी बात हिंदी अंग्रेजी दोनों में रखी, तो लोगों को मेरे ख्याल से अक्रॉस द लैंग्वेज बैरियर समझ में आई होगी। आपने बहुत जरूरी बातें हमारे साथ शेयर करी। एक तो ये जबरदस्त कंसर्न, हम सब लोगों की चिंता कि किस तरीके से जो आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमारे देश का संविधान है, उसमें जो धारा 19(1)(a) है, उसके अंदर जो हमें अधिकार मिला है, सूचना का अधिकार, हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन अगर हमारा है संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, हम बोल के कैसे सकते हैं, अभिव्यक्ति कैसे आजादी हम अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें सूचना नहीं मिली। और ये कह देना कि हम संविधान का ही इस्तेमाल करते हुए आपको बैन कर रहे हैं, अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार जो अभिव्यक्ति और बोलने का अधिकार है उसी को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं, ये तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता है और बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। एक लोकतंत्र में, जहां लोकतंत्र को हम सब जानते हैं कि अगर एक चीज लोकतंत्र में हमारे पास है जो तानाशाही में किसी के पास नहीं है, वो है सवाल पूछने का अधिकार। तो सवाल पूछने का, सूचना लेने के अधिकार को ही अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए तो लोकतंत्र कैसे रह जाएगा, ये आपने बड़ी चिंता जताई। आपने हमेशा, आप ये बात कहते हैं और आज भी आपने कहा कि बहुत जरूरत है कि सभी नागरिक हमारे देश में, जो लोग सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो सभी मिलकर चर्चा करें कि किस तरीके से जो हमारे उच्चतम न्यायालय है और जो हमारे हाई कोर्ट्स भी हैं, वो कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं सूचना के अधिकार के ऊपर। हम सब ये जानते हैं कि सूचना का अधिकार हमें मिला भी जब जुडिशरी ने, उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छी बातें करी और हमारे अधिकार के लिए खड़े हुए। लेकिन जब से 2005 से कानून पारित हुआ है, उसमें जुडिशरी भी कवर्ड है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी आने लगे हैं, जजमेंट आने लगी है जो कि इस अधिकार को संकुचित कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे मौलिक अधिकार को संकुचित करते हैं, उनके बारे में चर्चा लगातार करने की जरूरत है। आदित्य बंदोपाध्याय, जिसमें एक तरह से आपने बताया कि कोर्ट ने अपने जजमेंट में तो नहीं, पर अपने जो ऑब्जर्वेशंस करे कोर्ट ने, उसने इस तरीके की बातें कर दी जो कि जो ऑर्डर्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें बड़े आराम से इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें लिखा है कि ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि 75% सरकारी अधिकारी 75% समय तक लोगों को सूचना देते रहे। अरे आज जब डिजिटाइजेशन का समय है, जब सारी सूचनाएं कंप्यूटरकृत हो सकती हैं, तो ऐसी आपत्ति और नौबत आने की कहाँ संभावना है। लेकिन फिर भी ऐसा लिखा गया कोर्ट के द्वारा, और फिर ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जब ऑर्डर दिए जाते हैं। पीआईओ जब सूचना नहीं देते, या फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी जब ऑर्डर्स देते हैं। गिरीश रामचंद्र देशपांडे का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का,
उसमें तो बहुत ही चिंताजनक बातें कोर्ट ने कह दी कि हम लोग के जो अधिकार हैं उसे संकुचित कर दिया, कि तमाम तरीके की सूचनाएं आज ऐसी हैं जो कि धारा 81J के तहत आज हमें मना की जा रही है, क्योंकि इस ऑर्डर में इस तरीके की बातें लिखी गई हैं प्रिवेसी को लेकर, जहां पर जो लोगों को अधिकार बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए था सूचना लेने का, उसे भी संकुचित कर दिया गया है। आपने जो एक बात कही जो मुझे लगता है कि जरूरी है इस परिप्रेक्ष्य में बैनिंग और ये जो पूरी चर्चा चल रही है, कि जो भी सूचनाएं लोग मांगते हैं वो सूचना, जो सवाल है, जो मांगी गई सूचना है और जो सूचना दी जाती है, उससे सरकार को खुद ब खुद पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए, जिससे कि अगर किसी और ने वो सूचना ऑलरेडी मांग ली है तो मुझे 30 दिन तक इंतजार करके या फिर सालों तक इंतजार करके कमीशंस के लिए वेट ना करना पड़े, सीधा ही मैं वो सूचना मांग लूं, और वो सूचना अगर बहुत लंबी हो, बड़ी हो, वॉल्यूमिनस हो, तो बार बार सरकार को भी देने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये इस तरीके की चीजें, जैसा कि पहले मिस्टर हबीबुल्लाह और मिस्टर आजाद ने भी कहा था, इनके ऊपर सोचने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और आपने जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की गुजरात के केस में, जहां पर कहा गया है कि अगर अलग अलग तरीके से सूचना मांगी जा सकती है तो सूचना के अधिकार का के जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल किया जाए। ये ऐसी सी जो तमाम जो जजमेंट्स आ रही हैं वो बहुत ही खतरनाक है सूचना के अधिकार के लिए, और इनकी भी आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। और हम इन सारे मुद्दों को चर्चा में रखेंगे, और जब भी इस तरीके की चर्चाएं होती हैं वहां पर इन सब के ऊपर जरूरी है कि बातचीत हो। और आपने जैसे कहा कि लोकतंत्र में लोगों का अगर तंत्र चलना है तो हम सभी को इन सब चीजों पे एंगेज भी करना होगा, और ऐसे जो गलत तरीके की जजमेंट्स और ऑर्डर्स आते हैं उनके खिलाफ आवाज भी उठानी होगी, क्योंकि ये तो हमारे मौलिक अधिकारों की ही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शैलेश। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री राहुल सिंह जी से, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर हैं। राहुल जी, आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबिनार भी चलाते हैं हर हफ्ते, जहां पर चर्चा होती है सूचना के अधिकार की बात के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में। और हमने रिक्वेस्ट करा, मिस्टर राहुल सिंह is still working as an information commissioner, but he agreed to come and join us and talk on this issue. But he is not going to speak on the orders themselves. He's going to refrain from doing that, but he's going to talk about the larger issue, issues which are raised in these orders. तो राहुल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप अगले 12 मिनट में अपनी बात रखिए। शुक्रिया अंजलि जी। इनफैक्ट मैं 12 मिनट तो नहीं, मैं 2-3 मिनट ही लूंगा, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो 6 बजे तक का ही था, तो मैं 2-3 मिनट में अपनी बात रखूंगा। सबसे पहली चीज ये कि आप प्लीज समय ले, हम सुनना चाहते हैं। I will try to finish off early. So सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने बताया कि as a sitting information commissioner, it wouldn't be appropriate for me to comment on the information commission's judgment, but then at the same time I would be talking about the legal prospect of that order, because the other day एक ऑफिसर ने हमें फोन किया और उन्होंने पूछा, क्योंकि ये जो फ्रिवलेस आरटीआई एप्लीकेशंस का सवाल आता है, ये हर इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने ये विषय रहता है। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी कुछ विषय थे, तो उसको लेकर के उस अधिकारी ने हमसे पूछा था कि क्या आपके कमीशन से ऐसा ही कुछ ऑर्डर पास हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो नाउ इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा अंजलि जी ने कहा है और पंक्ति जोग जी ने भी कहा है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लीगली अगर आप, जैसे मेरे से पहले जितने वक्ता हैं वो बता चुके हैं कि लीगल प्रोविजंस तो है नहीं आरटीआई एक्ट में। आरटीआई एक्ट का एक ही प्रोविजन, जहां सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 18 में आपको जो आम जनता को भी अगर सम्मन कर सकते हैं, वहां एक प्रोविजन आता है जहां आप आम जनता मतलब पर्सन लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दैट कि आप ठीक है आम जनता को भी आप कंपेल कर सकते हैं कि वो आपके सामने
एफिडेविट प्रोड्यूस करे या फिर कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए आप उसको बाध्य कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर जब बात आती है कि क्या आप जहां जिस तरह से जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें रेस जुडिकेटा प्रिंसिपल पर बेस होकर के वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई केसेस और कई ऑर्डर्स को उन्होंने उसमें रेफरेंस देते हुए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, तो क्या प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा का रेफरेंस देते हुए इज इट प्रॉपर फॉर इंफॉर्मेशन कमीशन टू पास सच ऑर्डर? मेरा कहना है कि पार्शियली ये पॉसिबल भी है, पार्शियली और एक तरह से नहीं भी है। पार्शियली इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई एक ऐसा ऑर्डर आता है जहां हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है, जैसे किसी केस के बारे में ऑलरेडी उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना है, और उसके बाद फिर दोबारा सब्सिक्वेंट एक और एप्लीकेशन आ जाती है seeking the similar sort of information about in the same case, उनकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो क्या आप वो इंफॉर्मेशन दे देंगे एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो वहां तो आप प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई करेंगे क्योंकि आप बोलेंगे ठीक है, ऑलरेडी दिस मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें हम लोग ये इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप सेक्शन 18 में जो प्रोविजन है कि एज द मैटर प्रिस्क्राइब्ड, जो भी मैटर अगर प्रिस्क्राइब्ड है या फिर वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्रोविजंस देगी। सिविल प्रोसीजर कोड के तहत अगर सेक्शन 11 का प्रोविजन है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई करने का, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप किसी को लाइफ भर के लिए उसको बैन कर ले। मेरे सामने भी ऐसे कई मैटर आए जहां पर फ्रिवलेस एप्लीकेशंस की बात आई थी, तो वहां हमने पीआईओ को कहा कि देखिए अब आप डिसाइड कैसे करेंगे मैटर, तो आप उसमें अगर आप लिख दें कि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड किया जा चुका है और पहले भी दिया जा चुका है ये इंफॉर्मेशन, तो वहां तक तो ठीक है। और अगर रिपीटेडली अगर मान लीजिए कि कोई वही की वही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, तो ठीक है, आप उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए और एक लाइन का एक आंसर आप भी टाइप, जैसे वो टाइप फॉर्म में आपके पास भेज रहे हैं वैसे ही टाइप फॉर्म में आप जवाब भी उनको भेज दीजिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट पे भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो रिप्लाई तो एज पर प्रोविजन आपको करना ही होगा सेक्शन 7(1) के तहत 30 डेज में। रही बात कि यहाँ जहां हम देख रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, और ये डेफिनेटली बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब मेरे पास अगर कोई अधिकारी फोन करके ये पता लगा सकता है कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आई एम श्योर कि कई इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स भी दे आर ऑल्सो sort of exploring the possibility and their own jurisdiction की वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन रही है और इसको चेक करना जरूरी है, और यहाँ क्लैरिटी के साथ इसको बताना भी जरूरी है लोगों को कि आप जो इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो इंफॉर्मेशन देने की बात कही गई है, जहाँ जो शुरुआत में ही अंजलि जी ने एक बात कही और सेक्शन 4 की बात कह रहे थे हम लोग कि ब्लैकमेलिंग की बात कह रहे थे, तो मेरा हमेशा उसमें स्पष्ट मानना है कि ब्लैकमेलिंग का जो सवाल उठाते हैं, वो जो अधिकारी सवाल उठाते हैं, उनसे मैं हमेशा, मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि मुझे एक कानून बता दीजिए जिसका मिसयूज नहीं होता है, तो क्या उस कानून को स्क्रैप कर देंगे? दूसरा, मेरा कहना है कि ब्लैकमेलिंग का जो सवाल उठाते हैं, आपके पास आईपीसी का सेक्शन है, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं ब्लैकमेलर्स के अगेंस्ट? हम सबसे पहले हम खुश होंगे एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि आपने उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कोई कार्रवाई की है। करिए, आपको किसने रोका है? और ब्लैकमेलिंग के लिए, ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए आईपीसी में स्पष्ट प्रोविजंस हैं, आप उसके तहत काम करिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि 2005 में 120 डेज के बाद ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 के तहत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लानी थी, आप लेकर आज तक नहीं आ पाए, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन भी कोई मांगता है तो आप कहते हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है। भाई, ब्लैकमेलिंग का सवाल क्या है? और मेरा कहना है कि ब्लैकमेलर्स, आपको ब्लैकमेलिंग से कौन डरता कौन है? एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हमारे पास भी आरटी एप्लीकेशन दायर होती रहती है, लोग सवाल पूछते हैं, तो क्या हम ब्लैकमेल हो जाते हैं? हम तो आज तक ब्लैकमेल नहीं हुए। तो ये ब्लैकमेलिंग को लेकर के मेरा बहुत ही सख्त ऐतराज है, और जिनको लगता है कि ब्लैकमेलिंग रोकना है, तो मैं उनको यही सलाह देता रहता हूँ कि आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 के तहत ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाल दीजिए, तो ना आरटीआई लगेगी, ना ब्लैकमेलिंग का सवाल उठेगा। तो दिक्कत यही हो रही है कि आज तक जो आरटीआई एक्ट में जो प्रोविजंस हैं ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के, वो तो कभी पालन किए जाते नहीं है। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कि
दूसरे जो प्रोविजंस जो हैं वो कहीं कहीं से एक्सप्लोर करके, पता नहीं कहाँ से, आसमान से एक्सप्लोर करके वो ले आते हैं, और इस तरह से रिग्रेसिव ऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं जहां पर जो कि ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट है। तो इस बात को लेकर के मैं अपनी बात यहीं पर विराम देता हूं, और आई थिंक देयर आर फ्यू यहाँ पार्टिसिपेंट्स दोज हु आर रेजिंग हैंड एज वेल। अंजलि जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल सिंह जी ने बहुत सारी बातें हमारे साथ बहुत कम समय में शेयर कर दी। मैं बहुत संक्षिप्त में उनका ट्रांसलेट भी कर देती हूँ, उसमें थोड़ा सा बात जोड़ते हुए आगे भी जिससे हम ले जा सके। उन्होंने कहा कि देखिए एक प्रोविजन है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है। उन्होंने कहा कि जो एडजुडिकेटर्स होते हैं, अगर बार बार एक ही सवाल को कोई पूछते रहे तो उनके पास अधिकार है कि वो उन्हें कहे कि आप बार बार एक ही सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि इस पूरे मामले का निपटारा हो चुका है। अब मैं इसमें, क्योंकि ये बात अभी आई है, अभी चर्चा में नहीं आई थी, मैं थोड़ी सी बात जोड़ देती हूँ। कुछ prerequisites, there are certain prerequisites for invoking the doctrine of res judicata. One is that it should be the same parties, it should be the same matter, the same exact same information that has been asked before. So in this case, is it the same questions? In certain of these orders, we have read that the commission has said that apart from a few words that were changed, it's the same information that is sought. Now one has to examine what those words were. Supposing मैंने सूचना मांगी कि आप 2021 के लिए कुछ सूचना दे दीजिए, और वही सूचना मैं मांगती हूँ 2022 के लिए, तो रेस जुडिकाटा नहीं चलेगा। लेकिन if it is the same information, it's the same parties, and that matter has already been decided by the adjudicator, these three prerequisites have to be met. लेकिन आपने कहा कि ये मुमकिन है कि अगर ये तीनों प्रिंसिपल्स मीट होते हैं तो फिर ये कहा जा सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा भी कि आप जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके तहत आप कह दें कि ये सूचना तो आप ऑलरेडी ले चुके हैं, या ये सूचना आपको ऑलरेडी मना कर दी गई है किसी एडजुडिकेटर के द्वारा। तो केवल ऐसे हालात में वो समझते हैं, राहुल जी ने कहा कि ये सूचना जो है दिस कैन बी डिनाइड टू एन एप्लीकेंट। हाउएवर ही एग्रीज, उन्होंने ये बिल्कुल इसके साथ सहमति जताई जो पहले सभी वक्ताओं ने कहा है कि फिर भी ये कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं है सूचना के अधिकार कानून में कि किसी को बैन कर दिया जाए, किसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए कि आप सूचना मांग ही नहीं सकते आगे। मतलब जीवन भर अब आपका सूचना का अधिकार हम बंद कर रहे हैं, या ये कह दिया जाए कि पब्लिक अथॉरिटी को कह दिया जाए कि अब आगे से कोई भी सूचना मांगी जाएगी, अगर ये इंसान मांगेंगे, नागरिक मांगेंगे, तो आप मत दीजिए। मतलब ये तो एक तरह से आप एक सुरक्षा कवच डाल रहे हैं भ्रष्टाचार के अराउंड, ये कहकर के अगर सूचना मांगेंगे तो आप मत दीजिएगा। तो ये इस तरीके की चीजें जो है ये केवल इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि किसी ने बार बार एक सूचना मांग भी ली तो, और उसके लिए केवल ये कहा जा सकता है कि आप ये सूचना ऑलरेडी मांग चुके हैं, ये सूचना आपको इस पार्टी से फिर से नहीं दी जाएगी। राहुल सिंह जी ने भी कहा कि सारी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड हो सकती हैं, धारा 4 के तहत अपलोड होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया है, हम बार बार सुनते हैं कि हमारा इतना पैसा जो है पब्लिक टैक्स पेयर्स का जो मनी ऑफ द एक्सचेकर इज बीइंग डिवोटेड टुवर्ड्स डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड्स, दे मस्ट बी यूज्ड। यहाँ पर मैं जो शैलेश जी ने भी कहा था उसको भी लाना चाहूंगी कि सूचनाओं को जहां तक हो सके डिजिटाइज किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा, राहुल सिंह जी ने, कि ब्लैकमेलिंग का क्या मतलब है। ये कहा जाता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी नागरिक, और ये केवल जो सूचना मांग रहे हैं एप्लीकेंट है उनके लिए लागू नहीं है, कोई भी नागरिक अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उसके लिए इलीगल काम करते हैं
कानून का उल्लंघन किसी भी कानून का करते हैं, चोरी है, कुछ भी है, तो उसके लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, उन सब चीजों के लिए अलग कानून है, अलग जगह पर उनका जो सुनवाई होनी चाहिए। सूचना आयोग में सूचना आयुक्त का काम नहीं है कि वो लोगों को बैन करके कहें कि आप ब्लैकमेलर आयोग का नहीं है। और बहुत जरूरी है कि आयोग अपनी जिम्मेवारी समझे और ऐसी चीजों को का इस्तेमाल करते हुए, एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल करते हुए लोगों के सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित ना करें। मेरे ख्याल से 3-4 चीजें जो सभी वक्ताओं ने कहा सामने आई है और जो लगातार सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय अभियान में जो सभी तमाम लोग जुड़े हैं उनकी ओर से भी उठती आई हैं। पहली चीज, हमारा मानना है कि धारा 4 जो है उसका सही से अनुपालन हो, क्योंकि लोगों को हमारे देश में लोग हैं जिनके पास इतने सोर्सेस नहीं है कि वो जाकर सूचना के अधिकार में एप्लीकेशन लगाएं, फिर उसके फर्स्ट अपील में जाएं, अगर सूचना नहीं लगे फिर सेकंड अपील में आयोग के पास जाएं, सालों तक वेट करें। लोगों को सूचना के अधिकार के तहत धारा 4 में सूचनाएं सही से मिले, ये दायित्व है पब्लिक अथॉरिटीज का और सरकारी जो महकमे हैं उन्हें ये करना है। दूसरी चीज, जितने भी आरटीआई एप्लीकेशंस लगाए जाते हैं और उसकी सूचनाएं दी जाती हैं, जब तक कि वो धारा 8 के तहत एग्जेम्प्ट नहीं है, वो सारी सूचनाएं जो हैं वो सरकारों को खुद ब खुद अपनी वेबसाइट पर, इनफैक्ट इंफॉर्मेशन कमीशंस भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, वेबसाइट पर डाल दी जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को सूचना मिलती रहे, सूचना के अधिकार के तहत एप्लीकेशन लगाने की जरूरत ना पड़े। इससे सरकार का भी काम बचेगा और लोगों की भी समय नष्ट नहीं होगा। तीसरी चीज, बार बार ये बात अगर हम ऑर्डर्स पढ़ें ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो सूचना मांगने वाले, सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने वाले एप्लीकेंट थे, ये बड़े कैंटेंकरस है। ये बार बार शब्द का इस्तेमाल होता है कि ये बुरी तरह से बोल रहे हैं, ये अच्छे से नहीं पेश आ रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम ये शुरू से बात कह रहे हैं कि आज अगर हमारे देश में कोर्ट्स की जो हियरिंग्स हैं ओपन है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि टेलीकास्ट होगा, वेबकास्ट होगा सारी हियरिंग्स का, तो कोई कारण नहीं है कि सूचना आयोग की हियरिंग्स का टेलीकास्ट या वेबकास्ट ना हो। तो बहुत जरूरी है कि सभी कमीशंस अपने जो भी हियरिंग्स होती हैं वो ओपन हियरिंग्स हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ऐसा मुद्दा है जो लगता है जिसमें कुछ बहुत धारा 8 के तहत कॉन्फिडेंशियल डिस्कस होने की जरूरत है, वो इन कैमरा किया जा सकता है। बाकी सारी हियरिंग्स को ओपन हियरिंग्स होना चाहिए, वेबकास्ट होना चाहिए है। लोगों को मालूम रहेगा कि कमिश्नर्स क्या रवैया है, लोगों का क्या रवैया है, एप्लीकेंट्स का क्या रवैया है, और चारों तरफ से ये एक जरूरी तरीका है सूचना के अधिकार को सशक्त करने का। कमिश्नर्स कौन बन रहे हैं इस पर भी एक नजर डालने की जरूरत है, और किस तरीके के कमिश्नर्स की नियुक्तियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात कही है कि जो तरीका है कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का वो पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि ऐसे ही लोग कमिश्नर्स बने जो सूचना के अधिकार को शुरू से दिखाते आ रहे हैं कि वो उस अधिकार का अनुपालन भी करते हैं और उसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ये नहीं हो कि ऐसे लोग कमिश्नर्स बना दिए जाएं जो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, ये ना समझते हुए, ये ना ध्यान में रखते हुए कि सूचना का अधिकार लोगों का लोकतांत्रिक मौलिक अधिकार है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में भी। ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, ये ना केवल हमारे आज पैनल पे भी लोगों ने इसके बारे में चर्चा की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को खुल के कहा है अपनी जजमेंट में। हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कह रहे हैं कि अगर कोई पूछना चाहे तो वो लिख दें, चैट में लिख दें। 2-3 हाथ भी उठे थे, समय ज्यादा
नहीं है। लोकेश बत्रा जी का हाथ उठा था। लोकेश जी, अगर बहुत संक्षिप्त में 1 मिनट लेते हुए आप सवाल अपना पूछ लें, बात रखते हैं अपनी, तो आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। लोकेश बत्रा जी जो सूचना के अधिकार के इस्तेमाल में लगातार लगे रहते हैं जब से कानून पास हुआ है। चलिए, नमस्कार सबको, मेरा ग्रीटिंग्स। मैं ये बताना चाहूँगा, सिर्फ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में आजकल पेंडेंसी कैसे कम की जा रही है। फाइनल हियरिंग बिल्कुल बंद कर दी गई। मतलब अगर आपने शो नोटिस किसी को इशू किया या कंप्लायंस रिपोर्ट की, तो उसके 1 महीने जो भी समय दिया है उसके बाद हियरिंग चाहिए। आज ये हालत हो गई है कि शो कॉज नोटिस के बाद में एप्लीकेंट को बार बार पूछना पड़ता है उसका फाइनल रिजल्ट क्या है। और इस इशू पे लास्ट 1 महीने से मैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से लेके टॉप ब्रास से बात कर रहा हूँ, सब शांत है। तो मैंने कल उनको सबको लिखा, क्या टेम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हैज गॉन ओपेक, सबके व्हाट्सएप पे गए मैसेज। अब बताइए कि आपका केस है, आप ही को नहीं मालूम कि उसका फाइनल क्या हुआ। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में अर्लियर टाइम्स they used to say, okay, hearing will be held after 1 month after complaint. You got to give your views, and if show cause notice, whether you are satisfied or not, it's a appellant's case. ऑनलाइन पोर्टल का एक और नुकसान और फायदा है, वो तो करा दिया, बहुत फायदा था, परंतु एप्लेंट का वो फाइल खोली जाती है ऑनलाइन पोर्टल पे, बट रेस्पोंडेंट जो कि आज की डेट में 24/7 दे कैन वॉच दिस ई बुक, व्हेन दे आल्सो पोस्ट, you get a message saying that this has been posted. You don't know what is posted. When you ask, they don't give. So these are the few issues I have taken up recently with the chief, but I don't see anything much happening. Thank you. Whisper, see, there is a whisper says that this is, if they do second hearing, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी केसेस को खत्म करना। नहीं, धन्यवाद लोकेश जी। कमीशंस की फंक्शनिंग के ऊपर बहुत सारे इस मुद्दे को हमारे सामने रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े सारे केसेस रिटर्न भी हो रहे हैं, उनके ऊपर हम जरूर चर्चा रखेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है, जो कि ब्लैक लिस्टिंग का मुद्दा है, वो एक गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर अगर कुछ कहना चाहें, सुमन जी हैं जो अपनी बात रखना चाह रही हैं। जी अंजलि जी, just a minute, I just wanted to say a word. या पंक्ति मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारे कमीशन ये कहते हैं कि जितने भी ऐसे ज्यादा एप्लीकेशन करने वाले लोग हैं उन लोगों को लिस्ट किया जा रहा है। आज के दिन में जो एप्लीकेंट है, जो ब्लैक लिस्ट होने के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में उनका केस एडमिट होके एक नोटिस निकलता है, आगे कुछ हुआ नहीं है उसमें। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप क्या हमें गाइड कर सकते हो कि हम किस तरीके से हमारी बात या हमारे कंसर्न इंफॉर्मेशन कमीशन तक पहुंचाएं, या और सिंपल भाषा में कहूँ तो किस तरीके से हमारे कमीशन को हम रोक सकें कि ये वो जो करने चाह रहे हैं वो कंटिन्यूअसली, और एवरी कमीशन में, एवरी ऑर्डर में वो पूछते हैं कि इन्होंने कितने एप्लीकेशन फाइल किए हैं, और वो लिखे जाते हैं कि इन्होंने 35 फाइल किए हैं, इन्हें 50 फाइल किए हैं, इन्होंने 10 फाइल किए हैं। तो वो कंटिन्यूअसली एप्लीकेंट के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि मेरे इतने एप्लीकेशन हुए, अब मैं बैन होने जाऊंगा। जी सुमन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? तो उसके बाद हम लोग कमिश्नर्स के पास एक बार लौटेंगे फॉर वेरी ब्रीफ कमेंट्स। नमस्कार मैम, मैं हरियाणा से हूँ, सुमन रावत। मैम, हमारी कल आयोग में कम से कम 8 से 10 सुनवाई हुई थी हरियाणा में, लेकिन वहां पे SPIO आए हुए थे। उन्होंने बताया कि इनकी लगभग पिछले 1 महीने से और अगले 3 महीने तक कम से कम भी 40 सुनवाइयां हैं, अलग अलग मैटर्स पे, डिपार्टमेंट से संबंधित, 1 या 2 डिपार्टमेंट से संबंधित। तो वहां जो SPIO हैं उनसे जब सूचना आयुक्त कह रहे हैं कि आप हमें लिखित में दीजिए कि 3 महीने में या 4 महीने में इनकी कम से कम 40 सुनवाइयां हैं और आगे की कार्रवाई हम करेंगे, हम देखते हैं इसको, जो मतलब वर्बल कह रहे हैं कि हम देखते हैं इसको, सूचना आयुक्त। तो मैम, इस कंडीशन में वो
क्या धमकी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं इसको? अलग अलग मैटर्स है मैडम। मैम काफी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मैटर है, वो सूचना नहीं देना चाहते। अगर सूचना मिल जाएगी तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। जी, मैं समझ गई। मेरे ख्याल से हमारे कमिश्नर्स जो अभी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो इसके ऊपर बोलेंगे भी। ये प्रॉब्लम बहुत जगह पे आती है कि बहुत सारी आपने आरटीआई एप्लीकेशन लगा दी, ये कैसे कर दिया आपने? तो मतलब सूचना के अधिकार कानून में क्या कोई पाबंदी है कि कोई सूचना नहीं मांग सकता एक से ज्यादा एप्लीकेशन में या 10 से ज्यादा में? ये बड़ा सवाल है। लास्ट क्वेश्चन दर्शन देसाई जी मुझे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना हाथ उठाया है। दर्शन जी, आप अपनी बात रखें। A very small question. We have been discussing about the ban on applicants and that they have no business banning them. So we have had a long discussion on that. You understood that, but I just wanted to know, how do we stop this? How do we stop this attitude of banning applicants? Because from what I understand, it is absolutely illegal to ban applicants. The information commissioners cannot abrogate all the authority to themselves and they decide. It's a typical sarkari attitude jo kehte hain कि they just don't want to give information. So how do we stop this ban thing? What's the way out? Thank you very much. I am now going to request our panelists to please take a couple of minutes, 2 minutes each, to respond to some of the questions that have been raised, and also, like Pankti said, indicate the way ahead. How can citizens move towards ensuring that this sort of thing does not happen? I'll start with Mr. Habibullah. If you could please unmute yourself. I think I'm unmuted. Can you hear me? Yes, we can. And now you see, the point is, basically, I think this is what has gone wrong. The information commissions must look upon themselves as a means of protecting the right of the citizen to access information. That is why the information commissions have been created. The information commissions have not been created as lions under the throne. They are not supposed to protect the government from disclosing information. I think this is probably, from the discussion, it appears to me that this is unfortunately the attitude. Probably the fault lies with people like myself and Yeshua, having been in the service, we've come into the commission, and having been in the service, we've always felt that we are serving the government and we have to do this. But the point is that the Information Commission is not something that is there, or the Right to Information Act, and I repeatedly have said this since I was Chief Information Commissioner, is not a means of weakening the government. It is a means of strengthening the government. And how is the government to be strengthened? Because the government has direct access to information on how the people think. After all, in a democracy, as we discussed earlier, what is a democratic government doing? A democratic government is there to serve the people. If the people have complaints, if they feel that they want some information, then it means the government is not performing. So therefore, it's not the Information Commissioner to work against the government, to work for the government. And government in a larger, as the Prime Minister has said, governance, not necessarily government. And that is the Information Commission is part of governance. So I think the attitudes are the key. Procedures one can go into. It's absurd. How can you say that you can't give more than 5 applicants? I mean, it's ridiculous. It has got no basis in the law. That nobody can make this kind of application or that kind of application or more than this number of applications. And where the remedy lies, of course, is in the Information Commissions, which are supposed to entertain the complaints. Or then, if the Information Commissions fail to do that, in the courts. Unfortunately, from what I'm hearing, we are all failing in our duty. That is why I had closed my discussion by reminding the Information Commissions, please understand your duty. What is your duty? And I repeat this, your duty is to facilitate access under the access to information under the law, legal.
access to information to the public. And it's also necessary in this day of Wikipedia and so on and so forth, where access is readily available to people. Because if you don't regulate it, then even information which you don't want to go out will start going out. And that will compromise the security of the nation. So it is best, in the interest of government, for the government to be open with its information and to ensure the closure and security of that information, which the disclosure of which will compromise its security. That's all I have to say. A general answer, yes, but that is the principle which must be adhered to. So, I think there is a question by Akshay. Akshay, do you want to quickly say your question before Mr. Azad responds? Hello to everybody. Good evening. Ma'am, my question is, actually my concern is not directly related to the topic at hand today, but actually my case is that on 22nd of August, First Appellate Authority issued an order. Sorry, Akshay, we can't take up a specific case right now. We are very happy to discuss that with you subsequently after this discussion. Right now, the discussion is very much on banning these applicants. So I'll now request Yashovardhan ji, अगर आप अपने आप को unmuted ही हैं, आप please अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आई थिंक सुमन जी ने पूछा था हरियाणा के बारे में, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। देखिए, मेरा सुझाव ये रहेगा कि भ्रष्टाचार तो प्रियम्बल में लिखा है कि ये आरटीआई का फर्ज है कि भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के प्रश्न में अगर आप 50-60 प्रश्न पूछेंगे तो मैं आपको पर्सनल व्यक्तिगत सुझाव दे रहा हूं, तो उसकी परिधि इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ऐसा फैलाव उसका बढ़ जाएगा कि आपको वो सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर वो 6 मंथ वो बढ़ाते जाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को देते जाएंगे। भ्रष्टाचार के जो प्रश्न है बड़े फोकस्ड होने चाहिए, इसलिए अगर आप उन्हीं प्रश्नों को बांध कर बिल्कुल 5 ऐसे आरटीआई में अगर आप बांध देंगे तो मैं समझता हूं फोकस्ड क्वेश्चंस की जानकारी आपको बेहतर तरीके से मिलेगी, क्योंकि उसमें आप बार बार फिर ये जिरह नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा। वैसे उनको कोई अधिकार नहीं है कि आपके किसी प्रश्न को वो डिनाई करें, और इसलिए आपको इसके बारे में प्रयासरत रहना पड़ेगा। Now, the other 2 questions which are related, that is, what should we do about banning? Now, the question is, in case of High Court, many of the stay orders, for example, the High Court has been doing a strange thing. In fact, they give a stay order without giving any reasons. One of my orders was stayed when I punished a PIO and I fined him 15,000 or something. It was stayed by the High Court and without giving any reason. And after 6 months, the stay was lifted without any reason. So these things we cannot explain. The only thing is that we tried in the CIC, but you can't do anything about it, that the registrar was constantly taking up these cases with the High Court and giving reminders and things like that. Now, I would say that this seminar, for example, this in itself will carry the message to all the commissions, and the commissioners will be alerted. I'm telling you, this is the way to do it. You have to take up the civil society. It's like Anjali ji is doing. It's many other organizations should join, and CHRI or SNS, and there are so many other organizations. This is one way of doing it, because otherwise there is no other way except that you arouse the public by writing articles, having some seminars and arousing the consciousness. This is the only way. And I think this itself is a very, very positive step. Thank you very much, Mr. Azad. बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? इस मुद्दे से ही संबंधित है, तभी हम हाँ, नहीं, ये मुद्दे से ही संबंधित है जी। बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि राहुल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी, तो वो
अंजलि जी, अभी जो ट्रांसपेरेंसी की बात हुआ कि वो उनका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, लेकिन हमारे गुजरात इंफॉर्मेशन कमीशन में तो हम मोबाइल भी नहीं ले जा सकते, उनको बाहर रखवा देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की बात कहाँ से आ गई? मैं बोला कि इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोग ये क्या बोलते हैं, जो हमारे यहाँ से जो पब्लिक जो आवेदन देने वाला लड़का होता है, इनको भी ये लोग SMS करते हैं। उनको जो PIO होता है, वो जो अहवाल भेजता है, वो भी SMS से भेजता है। अगर मुझे देखना है तो मैं मोबाइल से देखूंगा कि SMS में आता है कि भी इसने क्या क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। अगर हम अंदर लेके नहीं जा सकते तो उनके पास रजूआत कैसे कर सकते हैं? इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने तो उनको अभी एक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हमने उनको नोटिस भेजा है। उनके बाद आप उन्हें और आगे गाइड किए कि उसमें क्या किए। वही तो मोबाइल नहीं ले जाने से इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इसमें ये लोग क्या अंदर सोच रहे हैं कि अर्जदार हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, दोनों को भी मोबाइल लेने से अंदर नहीं ले जा रहे हैं कोर्ट रूम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट इशू है, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि आज तो लाइव स्ट्रीमिंग हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हियरिंग थी, जो कोर्ट था उसकी आज लाइव स्ट्रीमिंग हुई पहली बार। और कोर्ट ने तो अब कह दिया है कि हम लाइव स्ट्रीम करेंगे अपनी जो हियरिंग्स हैं उनको। तो अब वेट यही है कि जितनी ज्यादा पारदर्शिता बढ़ सके, लाइव स्ट्रीमिंग हो सके, इंफॉर्मेशन कमीशंस की फंक्शनिंग की भी। और ये जो पूरा आपने गुजरात मॉडल से हमें परिचित कराया कि मोबाइल फोन अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं। हमने अनफॉर्चुनेटली सुना है कई स्टेट्स में आम पुलिस भी बैठी रहती हैं, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है अनलेस यू कैन प्रूव कि आप एप्लीकेंट हैं। तो इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं, ये सूचना के अधिकार कानून में मुझे तो बिल्कुल नहीं याद कि जब हम इस कानून की परिकल्पना कर रहे थे या आज भी उसके बारे में सोचते हैं, तो हमने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि कमीशंस जो हैं, जो कि वास्तव में लोगों के दोस्त के रूप में, सूचना के अधिकार दिलाने वाले के रूप में सोचे गए थे, उनकी कल्पना की गई थी, वहां पर ऐसी चीजें होंगी। तो ये चिंता का विषय है। अच्छा यशोवर्धन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? फिर मैं राहुल सिंह जी से। तभी एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरीज का एक एक्स कार्टर पोस्ट बना दिया गया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट्स में, और उन्हीं की पोस्टिंग की जाती है वहां पे, ताकि पुलिस की सारी अच्छी व्यवस्था हो। और कहीं कहीं तो रिटायर्ड DGPs बने हुए हैं, ताकि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर सब चीज ठीक ठाक से मेंटेन। जी धन्यवाद। अभी एक सवाल और भी है राहुल जी, आपने सारे सवाल सुने ही होंगे, लेकिन आप इन तमाम सवालों पे भी लिखें। और कैन बी गेट CIC वीडियो हियरिंग बाय RTI से ऊपर है कश्मीर के ऊपर इस कमीशन के ऊपर इस मामले को लेके FIR कर सकते हैं क्या? अच्छा, ये कुछ सवाल और सुझाव आ रहे हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट राहुल सिंह जी, आप अपनी बात रखें। जी तो इसमें जो एक सबसे अभी जो सवाल पूछा गया है कि RTI कितने नंबर ऑफ RTI आप कोई फाइल कर सकता है, क्या इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो यहाँ हम लोग बार बार क्लियर करते आ रहे हैं और फिर एक बार फिर क्लियर करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो ये रिस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, मेरा उनसे इनफैक्ट सवाल है, उन कमिश्नर से ये सवाल है कि आप मुझे बताइए कि जो इस देश में घोटाले उजागर हुए हैं RTI के माध्यम से, चाहे वो रेड क्रॉस घोटाला है, चाहे वो 2G स्कैम है, और वो तमाम स्कैम, आदर्श घोटाला है, वो तमाम स्कैम्स जो सामने उजागर हुए हैं, क्या वो घोटाले, आप ये बताइए, उनके जो RTI एप्लीकेंट्स थे, उन्होंने कितनी RTI एप्लीकेशंस फाइल की हैं? क्या इस तरह का ये जायज है कि इस तरह से आप नंबर ऑफ RTI एप्लीकेशन के बेसिस पे किसी को बैन करें, या फिर नंबर ऑफ RTI एप्लीकेशन के बेसिस पे आप ये धारणा बनाएं कि वो RTI एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो ये एक बहुत गलत धारणा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो यशोवर्धन आजाद जी ने एक चीज कही कि आप इंफॉर्मेशन कैसे मांगेंगे, ये बहुत जरूरी है कि RTI एप्लीकेंट जो हैं, मैं मानता हूं कि उनकी कई ग्रीवेंस भी होती है जिसके तहत वो RTI एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके रिड्रेसल के लिए भी फाइल करते हैं। थोड़ा सा होमवर्क कर ले, और अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है
तो आप जो जानकार लोग हैं उनसे बात करिए कि भाई ये इशू है, आप हमें बताइए कि हम इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं और कैसे इस मामले में कैसे आगे प्रोसीड करें। थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ी सी मेहनत करें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको ये बताता हूँ कि आपको उस विभाग में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो आपको बता देंगे कि ये इन्फॉर्मेशन मांग लीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिए। Correct. तो ये थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है और उससे आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरा एक और सवाल अंजलि जी, एक और सवाल अभी जो रिसेंटली पूछा, अभी मैं थोड़ा सा उसको भूल गया अभी, इफ यू कैन। आप FIR वाले सवाल की बात कर रहे हैं? नहीं, FIR से पहले, FIR तो सुझाव है उनका, वो हाई कोर्ट में जो ये बैनिंग के केसेस जा रहे हैं और वो पड़े हुए हैं वहां पे हाई कोर्ट में बैन करने के केसेस। हाँ, वो बैन के खिलाफ जो हाई कोर्ट में गए हैं तो वो केसेस वहां पे पड़े हुए हैं, क्या किया जाए ये पूछा। नहीं, उसमें तो डेफिनेटली, उसमें तो देखिए, उसमें ये क्योंकि इंफॉर्मेशन कमीशन का ऑर्डर है तो वो लीगल प्रोसीजर में तो उसको हाई कोर्ट में ही चैलेंज करना होगा। Correct. और हाई कोर्ट ही उस पर इज द राइट अथॉरिटी व्हिच कैन डिसाइड अबाउट द मैटर। लेकिन जो बैन कर रहे हैं वो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो इट इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द RTI एक्ट। ये बहुत क्लियर है, उसको लेके क्लैरिटी जी, सवाल मोबाइल को लेकर और वेबिनार, हाँ, मोबाइल को लेके था। को लेकर भी था। जी, यस, ऑफ कोर्स अंजलि जी, थैंक यू। इनफैक्ट मोबाइल को लेके सवाल था कि मोबाइल फोन अंदर ले आने से रोका गया है। हालांकि इसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि PIO को भी रोका गया है और एप्लीकेंट को भी रोका गया है। आप सिंपल उसमें वहां पर एक आवेदन दे सकते हैं और एज अ एविडेंस, अगर चूंकि आप बता रहे हैं कि जो SMS और ये तमाम चीजें होती हैं उसके थ्रू PIO कम्युनिकेट करते हैं, तो आप एज एन एविडेंस उसको सामने रखने के लिए आप अपने आवेदन में लिखित में दे सकते हैं कि मैं ये मोबाइल फोन सामने रख करके दिखाना चाहता हूँ, उस पर ये प्रूफ है हमारे पास। तो एज एन एविडेंस आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा, मुझे ये बात समझ में आती ही नहीं है कि जो ट्रांसपेरेंसी के वॉचडॉग हैं, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो इस बात से क्यों बचना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो भी वो ऑर्डर देते हैं वो ऑर्डर बंद कमरे में हो, 2 लोगों के बीच में हो और किसी को पता ना चले। मैं जो सुनवाई करता हूँ वो आप सुनवाई मेरे फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं। हालांकि मेरे साथ भी कुछ दिक्कत ये होती है कि कई बार नेटवर्क का इश्यू होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंफॉर्मेशन कमीशन का नेटवर्क इतना खराब है और मैंने काफी उसको कोशिश की है, मैं अपना पर्सनल नेटवर्क भी यूज करता हूँ, लेकिन वहां पे टावर ही नहीं है, वहां पे सिग्नल ही नहीं आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। लेकिन इनिशियली जब नेटवर्क आ रहा था तो मैंने अपनी हर सुनवाई जो है मैं उसको लाइव टेलीकास्ट करता था और वहां पर इनफैक्ट उसमें गुंजाइश भी नहीं रखता था कि कोई मुझे अप्रोच करे या बोले कि साहब ये इसमें ये गलती हो गई या इसको इस तरह से आप इसको जरा कम कर दीजिए। उसी समय मैं जुर्माना भी सुना देता हूँ कि भाई ये आपकी सजा है, ये इसमें आपने गलती की है और ये आपके पास अगर कुछ सफाई है तो आप दीजिए। और मुझे लगता है कि ये करना चाहिए और जितना करेंगे उल्टा अभी आप देखिए कि इंफॉर्मेशन कमीशन के कामकाज को लेके सवाल उठाया जा रहा है और वहां पर पारदर्शी होना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर ऑल आप उसी बात को लेकर के आप दूसरे डिपार्टमेंट्स को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, उनसे आप क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद। जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहना चाह रही थी अंत में कि आज का जो हमारा वेबिनार था उसका यही कोशिश थी कि जो एजुडिकेटर्स खुद रह चुके हैं, जो कमिश्नर्स खुद रह चुके हैं या हैं, वो अपनी बात रखें, क्योंकि हम लोग तो एज RTI यूजर्स, एक्टिविस्ट कह लीजिए, जो बात रखते हैं तो कई बार कहा जाता है कि आप लोग तो ये कहेंगे ही कि सूचना होनी चाहिए है। इसीलिए आज की कोशिश ये थी कि पैनल में हम सभी कमिश्नर्स की बात सुने और हमने ये देखा है कि किस तरह से कोर्ट्स का भी जो रवैया है उसके ऊपर सवाल उठा है। लेकिन मैं बस इसी चीज के साथ समाप्त करूंगी आज की इस वेबिनार को कि आंध्र प्रदेश कोर्ट में जब सर्कुलर को चैलेंज किया गया, जिस सर्कुलर में ये लिखा था कि कुछ जो लोग हैं जो बार बार फ्रिवलस RTI एप्लीकेशन डालते हैं उन्हें बैन कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा कि जब हमने इसको पढ़ा है तो हम मानते हैं कि दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल
unconstitutional and against the fundamental rights of the citizens, including the petitioner. So, with these words, I thank you all. I thank you, Mr. Habibullah, Mr. Razak, Mr. Rahul Singh, and also शैलेश गांधी जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको जल्दी जाना होगा और हमने समय से भी ज्यादा जितना आपको प्रॉमिस किया था समय लिया। आपने पेशेंटली इतना हमारी बात अपनी बात हमसे शेयर की और हम सबकी बातें सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को जिंदाबाद जो भी जुड़े थे आज के वेबिनार में। थैंक यू।